Welcome, everyone. I hope I'm audible to all of you. As you can see, some people, they don't like to take control, isn't it? Zoom developers have really worked hard and they created a mute button. And most people, they think people like us, those who do this day in and day out, they forgot to unmute themselves. It is next to impossible. So when you give an interview, that time you will come across similar problem where the client will be waiting for you, and that client is a busy person, and that person will actually make you wait for some time, maybe 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes. And at that time you will poke your nose unnecessary. No voice, no this, no that, no dhimaka, no phamama. Then they will understand who you are. First of all, such people do not clear their interviews. Yeah, that's how it works. So this is very harsh to hear, isn't it? Very, very harsh to hear. But that is the truth. And as I told you, I am Ayurveda guy. I am not allopathy guy, isn't it? So some medicines are very, 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 very bitter, but that's how it works. Now the question is, this particular script is available in Moodle. Okay. With the help of the script, we are going to deploy a cluster. Now, before we go ahead and deploy a cluster, there are certain things. I am going to make some mistakes purposely, and you will tell me why I am doing and what is the right thing to do. Point number one, we need a VPC. I already had some VPCs. I deleted them. Okay, now these some three VPCs that you can see in Asia Pacific, that is nothing to do with our job. It is something to do with application deployment. So if you know how to deploy an application, you have to start making your resume, because all the components that you are going to mention in your resume is already available in the POL. You think this question looks very nice to me. It's very difficult for me. I was not able to give the answer. That is the question interviewer is focusing on. That's a hint. So I'm going to create a VPC. So I have two options, VPC only, isn't it? And I can just fill this form. And one question. I'm going to select VPC and more. One question to you people. I do have an option of IPv4, IPv6. So, I received an email from the ruling body stating that we have extended the date until 2023. Now they have extended the date of IPv4 until 2040. So this was very relaxing message to me. You know why? IPv6 इतना जल्दी सीखने की जरूरत नहीं है. बटन दबाओ, आगे बढ़ो. अब कुछ लोगों को टेक्निकल कीड़ा रहता है, नहीं मैं सीख के रहेगा. अभी आज के सेशन के बाद बोलना ये सेंटेंस, हाँ पूरा भूत उतर जाएगा डेटा साइंटिस्ट का उधर ही जगह पे. So that's how it works. Now the question is, say thank you to all the cloud companies, those who are making our life easy. So I'm going to give a name. देखो तुम्हारा जो प्रोफाइल है ना, वो प्रोफाइल है ऑगमेंटेड एनालिटिक्स का. कौन सा प्रोफाइल है? ऑगमेंटेड एनालिटिक्स. देखो तुम्हारा मॉडर्न एनालिटिकल प्लेटफॉर्म, ये तुम्हारा प्रोफाइल नहीं है. ये प्रोफाइल किसका था? तुमसे पहले वाले बैचेस का था. अब उनको जब ये बात पता चलती है कि अरे इसका ऑगमेंटेड एनालिटिक्स है, तो कहीं ना कहीं होना चाहिए ना वो दिखने के लिए. तो मैं तुमको एक बार डेटा सेंटर के अंदर दिखा देता हूँ. दिख रहा है तुमको?
लेकिन समझ कुछ नहीं आ रहा है ना? तो उसके लिए क्या करना है? चिल करना है, चिल। समझ में आएगा, डोंट वरी। There are sessions which will make sure that you understand this. Okay, but right now, chill. Some people, those who want to type here in the search, augmented. Okay, so यहाँ पे आ गया देखो, Amazon augmented AI. Okay, now there is a product known as ThoughtSpot. क्या नाम है उसका? THOUGHT, ये स्पेलिंग का झंझट। ThoughtSpot. AI driven analytics. Okay, that is also called augmented analytics. तो जितने भी ये बिजनेस के अंदर है उसमें सबसे पहला अगर कोई पूछे, क्वेश्चन पूछे, हु केम इन दिस बिजनेस फर्स्ट, तो आई वुड से थॉटस्पॉट। यू नो व्हाई? क्योंकि मैंने अपने बैच को 2016 में थॉटस्पॉट इंट्रोड्यूस किया था। आज क्या चल रहा है? 2022। लेकिन मार्केट में अडॉप्शन नहीं हुआ, लिया नहीं लोगों ने, लिया नहीं, है ना? बैटरी की गाड़ी के जैसा। आ गया, आने दो, क्या प्रॉब्लम है? सीएनजी की गाड़ी आ गई, आने दो, नो प्रॉब्लम। सबके पास है क्या? नहीं। बट 2040 तक सबके पास होगी। लेकिन हमारे लिए एक रिलैक्सिंग क्या है कि भाई IPv4 तो अभी बहुत लंबी कहानी है, भूल जाओ, कहीं जाने वाला नहीं है, तो रिलैक्स, चिल, मजे की बात, बहुत खुशी की खबर है ये। ओके, मतलब दिस इज गोइंग टू लिव क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। मेरा तो चलो डेफिनेटली मैं तब तक तो पहुंच चुका रहूंगा कब्र में। अब तुम लोग देख लेना वो टाइम पे तुम्हारी पोजीशन में, वो तुम्हारी लाइफ है। नाउ VPC का नाम मुझको कुछ तो रखना है ना, सो आई एम गोइंग टू गिव अ नेम, ऑगमेंटेड एनालिटिक्स। तो जब मैं तुम्हारा ये वाला जो सेशन है ऑगमेंटेड एनालिटिक्स वाला, तुमको इतना मजा आएगा उसके अंदर, यू विल से यार मुझको लगा था ये बहुत भारी है। भारी है, डेफिनेटली है, बट क्लाउड कंपनीज ने उसको आसान कर दिया है। दे हैव मेड इट वेरी वेरी इजी। गेटिंग द पॉइंट? दैट्स हाउ इट वर्क्स। नाउ ऑगमेंटेड एनालिटिक्स मैंने उसका नाम दे दिया है, लेट्स गो अहेड। नाउ इट्स आस्किंग मी नंबर ऑफ टेनेंसी, तो यार डिफॉल्ट ही रहेगा। डिफॉल्ट का मतलब शेयर्ड, बिकॉज आई डोंट हैव सो मच ऑफ मनी टू स्पेंड ऑन डेडिकेटेड। Number of availability zones. Okay, in reality, we always need 3. In reality, okay, so I'm selecting 3. 3 availability zones. Now it is asking me, do you want to customize it? A, B, and C. So I don't want to do anything. 3 का 3 रहने देते, ये भी जैसा है वैसे रहने देते। Private subnet, it is asking me, do you want 6 or 3? So I will leave it as it is. Okay, now I want to click on create VPC. So you tell me, what is that I'm missing? NAT. तो अगर समझो मैंने यहाँ पे NAT सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे देखो डॉलर का साइन बनाया इसने, है ना? मतलब तेरे को खर्चे में जाना पड़ेगा। दैट्स अ प्रॉब्लम। सो पीपल दोज हु नेवर यूज्ड NAT, हाँ मतलब प्रैक्टिस नहीं किया तो यूज कैसे करेगा ना? लेकिन दोज हु नेवर यूज्ड NAT, उनके लिए खबर है, NAT will charge you every day. So if you create a NAT today, make sure you destroy that NAT today, so that you get charged only for 1 day. That is one possible dollar. Okay, शायद उससे भी कम है. Now I'm selecting none. तो मेरा एक प्रॉब्लम तुमको पता चल गया, मैंने नन सिलेक्ट किया इधर, नन देखो, मतलब आई एम नॉट टेकिंग अ NAT gateway. Why? Because you people will not practice. And if you practice and you forget the NAT gateway वाली बात, तो बिल बढ़ जाएगा जबरदस्ती। तो मैं तुमको ये तरीका भी बता देता हूँ विदाउट NAT वाला, एंड आई विल शो यू द वे विथ NAT एज वेल। लेकिन वो जो होगा वो प्योरली प्रोडक्शन ग्रेड होगा, और ये क्या है? एंटरप्राइज ग्रेड है। So in enterprise grade, you can play with it. Okay, you can actually, you have to learn certain things. So I'm creating VPC. अब किसी को अगर चाहिए तो कुछ चीजें हैं, जैसे राउट टेबल, ये वर्ड याद कर लो, इंटरनेट गेटवे ये याद कर लो, सबनेट याद कर लो, है ना? देयर आर सर्टेन थिंग्स यू हैव टू मेमोराइज विदाउट आस्किंग। सो माय VPC इज नाउ क्रिएटेड, और उसका नाम हमने क्या रखा है? ये वाला, ऑगमेंटेड एनालिटिक्स। सो लेट मी गो टू एक्शन, and
Oh wow, बहुत बदल गया ये, which is good for us, isn't it? बहुत अच्छे. Okay, so I'm going to subnet now. Selecting my subnet, that is, अब इतने सारे सबनेट्स है, उसमें से अपने को कौन सा चाहिए? We are looking at augmented वाला subnet. ये लो, ये आ गया. All the subnets that we just created. Okay, I just want to see what are the options they're giving. They're just giving one option of creating flow log. ठीक है, तो VPC क्रिएट हो गया है. अब उसके लिए सिक्योरिटी ग्रुप चाहिए मुझको. And let's see, I don't have any security group here and I need to create one. अब इसका भी नाम सेम रखना पड़ेगा so that I can remember. Description should be very elaborative for us to understand. I don't trust which VPC it has taken, so I will select once again myself. Now, so far adding rule is concerned, so I will just add one rule for now. Second rule I can add little later, isn't it? And that is my IP. And you can call this a VAN. Outbound, leave it as it is. I created one. अब इस पे देखो मेरी जो मिस्टेक है वो क्या है? मैंने NAT गेटवे नहीं बनाया. लेकिन क्यों नहीं बनाया? ताकि हमको बिल ना आए, isn't it? Okay, but can you call that a production grade without NAT gateway? So तुम बोलोगे no. तो मेरा next question, why? Why no? Why no? So these are all terminated machines. So we will not talk about this machine right now. We'll go to AMIs. So you're saying not going for repo upgrade, kaise karenge? Okay, security, cannot access repo through private. See, अब जब मैंने ये लिया है, क्या नाम है इसका, पब्लिक डोमेन में ही मुझको इसको डिप्लॉय करना पड़ेगा. पब्लिक डोमेन नहीं, सॉरी, पब्लिक सबनेट में डिप्लॉय करना पड़ेगा. तो एक एग्जांपल देखेंगे तो सब लोगों को समझ में आ जाएगा. पीपल दोज हु आर वर्किंग एंड देन दे आर डूइंग द कोर्स एंड दे आर थिंकिंग हम होंगे कामयाब, है ना, तो उनके लिए थोड़ा सा जरूरी है. सो आई एम लॉन्चिंग दिस पर्टिकुलर व्हाट image. The question is, how did I create this image? So I took one Windows 12 server and I saved that Windows 12 server with my configuration files on it. And I gave a admin password. बस कितना काम किया? 3 काम किया और उसका एक इमेज बना के रख लिया. क्यों? ताकि मेरा टाइम बचे. अदरवाइज ये सब बताते बताते बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है. Okay, so some people, those who are doing their labs, in the lab, volunteers can help you with that. So that's the reason we are pushing, in other words, labs as well. And we are saving time for people, those who are already experienced, those who already know certain things. So I'm going to opt out to old experience because this looks good to me. C4, because I need speed. You are not going to take C4, huh? You will take M4. C4 will put a hole in your pocket, possibly. So don't make that mistake. So I'm selecting persistent request. This is just a single machine. Augmented analytics में इसको डालना है मुझको. Subnet, I am going to select a subnet. This time I will select a public subnet. तुम एक चीज notice करो. Auto assign public IP address is disabled. So I have to enable this manually, which I am doing. And then because I don't have any IAM role for this particular what? Subnet or VPC. So I am not going to, actually we did not create any IAM roles. So if you have one, this is the time you can assign for this particular
instance. But now I'm going for the storage. तो मैंने अभी इसको पब्लिक में डाला तुम्हारे सामने. I am selecting. Okay. Yeah, one machine you create a snapshot and leave it. Leave it if you want to, or you want to create initially. I think you should keep on creating. तो मैंने अभी spot request लिया. ये क्या आ गया? Spot request के अंदर आया ना, मुझको instance पे जाना पड़ेगा अभी. Yeah, 80% discount. Very nice. That is important. So I will just put here running to save you from confusion. Okay, this is in 1A. मुंबई के डेटा सेंटर में 1A के अंदर. अब इसको मुझको क्या है याद दिलाने के लिए I have to give the name. So I'm just copying because ये पुरानी मेहनत काम आ रही है. देखो copy paste वाली. In IT everything is copy and paste. What to copy, where to copy from, you need an engineer. Okay. So point number one, I need to connect to this particular machine. So I will need a public IP address. So you will say yes. So in order to do that, मुझको क्या करना पड़ेगा? I will have to select this. Okay. Now you tell me, when I'm mentioning the IP address over here, is this good practiced, best practiced, or just practice? So ये जो लोग बोल रहे हैं ना कि DNS डालना चाहिए, see, याद रखना इस पॉइंट को. तुमको डालना क्या चाहिए? DNS का एड्रेस डालना चाहिए. Remember this. मेरा जो मशीन है ये यूजुअली अभी see, I am little fearless here because my machine always goes to AWS. Always. तो मेरा जो वो है ना प्रोवाइडर, उसको पता है कि ये AWS वाला बंदा है. ऑटोमेटिक. सो मैंने जैसे RDP का एक कॉन्फ़िगरेशन बनाया था, isn't it? And here we are connecting to that machine. So most people, those who are wondering कि यार पासवर्ड नहीं पूछा एक्चुअली, वो डाल भी दिया. वो किस में था? Say I'll show you. वो इसमें था, यूजर अकाउंट. You can see this. So while you're saving, you can create one. ये पुराना created था जिसमें पासवर्ड ऑलरेडी डला हुआ था. That's the reason it did not ask for the password. But now I am on this particular machine. So this is your workspace. तो तुमको कंपनी लैपटॉप देगी और तुम इसमें कनेक्ट कर जाओगे, isn't it? Directly. However, there is a VPN configured in the background which you would not know. So say for an example, मेरे पास VPN है. VPN. Sorry, I can't do that. बकवास है सीरी. OpenSurf VPN. यहीं से लेना पड़ेगा मुझको. Applications. अब एक पॉइंट याद रखनी है तुमको. आज मैं ये VPN से कनेक्ट नहीं करने वाला हूँ, सर्फशार्क से. ओके, तुमको सिर्फ दिखा रहा हूँ. दैट्स इट. आगे जाके करने वाला हूँ क्योंकि ये एंटरप्राइज है ना, प्रोडक्शन नहीं, ताकि तुमको आदत हो जाए. पहली बार देख के झटका लगता है, 2-3 बार देखा हो रहता तो रिलैक्स हो जाता है इंसान. सो नाउ द क्वेश्चन इज, माय क्लाइंट इज से फॉर एन एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स. तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा. सी, आई एम क्लिकिंग. So you want to see that, right? उसके लिए I will have to take you to my security group. Inbound. दिख रहा है IP address? This one. अच्छा, किसी की नजर पड़ी नहीं उसके ऊपर. So let's go back. Let's keep both on the same screen. See this. Now you can see both the IP address. This IP address is my current IP address, which means if I ask curl if config.co, तो ये जो IP एड्रेस दिखा रहा है मेरे मशीन का, दिखाना क्या चाहिए? 49.36.58.102. और दिखा क्या रहा है? 209 ब्ला ब्ला ब्ला, अमेरिकन.
isn't it? इसका क्या मतलब होता है? Now you know that this is my local machine, isn't it? Local machine. Okay. मैक को ज्यादा इज्जत मत दो, बहुत पैसे में खर्चा करवाता है कम वक्त. ओके, माई आईपी मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया. अब देखो माई आईपी जैसे मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ किया, दिख रहा है तुमको ये आईपी? यहाँ पे आईपी क्या दिखा रहा है? देखो यहाँ क्या दिखा रहा है? 209. यहाँ क्या दिखा रहा है? देखो. नाउ आई एम आस्किंग गूगल. देखा जाए तो ये जो गूगल है ना, ये google.com पे जाना चाहिए, अमेरिकन. सी, अब तुम्हारे केस में तुम .com करोगे तो ऑटोमेटिकली करेक्ट करेगा तुम्हारा और लेके कहाँ जाएगा? .co.in पे. मेरे केस में ऐसा नहीं किया क्योंकि उसको आईपी एड्रेस क्या हो गया? दिखाई दिया, isn't it? So I will say what is my IP. ये भी वही आईपी दिखा रहा है. Now I'm coming back here, okay, to show you. When I say my IP, it says 73 dot blah blah blah. I'm saving the rule. See, when I did if config, उसके अंदर भी वही आईपी दिखाया जो गूगल को देख रहा है. लेकिन जब मैं AWS में उसको बोलता हूं तो उसको ये आईपी दिखता है. अरे कंफ्यूजिंग है कि नहीं है? कंफ्यूजिंग है ना, डेफिनेटली. तो वो कंफ्यूजिंग इसलिए है ताकि हैकर जो है हैक ना कर पाए. समझ में आया कि नहीं? उसको यही नहीं समझ में आएगा कि आईपी, और वैसे भी ये प्रोटेक्टेड है. दिस इज प्रोटेक्टेड. नाउ द क्वेश्चन इज वेदर आई एम कनेक्टेड और नॉट. आई वांट टू चेक दैट. ठीक है ना? आई एम चेकिंग तुम्हारे लिए, तुम्हारी खुशी के लिए. सो आई डोंट हैव एनी लिनक्स मशीन, सो हाउ विल आई चेक, राइट? एक काम करते हैं, यहां से चेक करें. क्रोम. देखो C4 लार्ज लेने के बाद यह हाल है, क्योंकि ये विंडोज जो है इसकी आदत सी है, कोई भी चीज के लिए तड़पा देता है. Okay, now I'm asking the same question. Reinstall Chrome. Oh my God, that's pathetic. What is my IP? यार अभी तो बहुत दूर जाना है अपने को. अब तुम बोलोगे ये अलग आईपी. एक्चुअली ये जो आईपी है ना, तुमको दिख रहा है. देखो मैं दिखाता हूँ यहाँ पे. Running. दिख रहा है? See here, this one. तो वो बराबर कैप्चर कर रहा है वो, isn't it? And I am connected also. I am connected with that IP. So who is managing all this? VPN is managing. Who is managing this? VPN. So now I'm going to disconnect, because see, if I want, I can continue with this VPN if I want. So let's do that. चलो. तो अब क्या हो गया मालूम है? मेरा जो DNS है और AWS को पता चल गया है कि मैं VPN यूज कर रहा हूँ. Yeah, because they are giant, they have big DNS services, they have all good networking guys working for them and this, that, all. So they capture all the information, they do machine learning on that, and they find out that you are using VPN, which is good. They love you for that. They want you to do that. What is VPN? Virtual Private Network. Okay. उसको थोड़ा सा आगे की टॉपिक में हम लोग अच्छे से समझेंगे. अब आज मैं सिर्फ ओवरव्यू इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि हाँ ऐसी कोई चीज होती है जो प्रोडक्शन ग्रेड लेके जाती है. बिकॉज हमारा जो फोकस है आज का वो कुछ और है. सो आई एम क्लोजिंग दिस. आई एम कमिंग बैक टू AMI. सी आई हैव मल्टीपल ऑप्शंस. तो मैंने किसी बैच में CLI के ऊपर
S3 से उनको बोला रेपो डाउनलोड करो, तो उन लोगों ने मेरा S3 का बिल बढ़ा दिया। फिर मैंने सोचा ठीक है कुछ और करते हैं, फिर वहां पे उन लोगों ने मेरा बिल बढ़ा दिया। फिर मुझको ऐसा लगा कि यार ये बिल से बचने का सबसे आसान तरीका ये है कि शेयर दिस web server with them directly. I will show you the permissions. I'm going to action, modify image permissions. It is private for this particular account, isn't it? So if I want to make it private for multiple accounts, तो तुम्हारे सारे अकाउंट नंबर्स मुझको लेने पड़ेंगे, इसमें डालना पड़ेगा, ऐड परमिशन करना पड़ेगा। ऐसा तो बहुत बड़ी मगजमारी हो जाएगी ना। तो लेट्स मेक इट पब्लिक। व्हाई? अरे वैसे भी फ्री का माल है, उसके लिए कंजूसी कैसे, isn't it? So what I did, I made that public, which means now you just need the AMI address like this one. अब ये AMI ID का तुमको वैल्यू समझ में आया? बहुत सारा इसका वैल्यू, अभी आगे आके क्लाउड फॉर्मेशन में इसका वैल्यू और समझ में आएगा। बट राइट नाउ I just captured this. Okay, I'm going back to instances, launch instance, just like that, so that ये AMI को डाल दिया मैंने यहाँ पे और मैंने हिट किया एंटर। उसने बिगिन किया सर्च, isn't it? यहाँ पे आया देखो, in my AMI I am getting to see this particular image. However, when you do the same search, you will also get to see. Okay, it takes some time to update, don't worry. But in that case, it will show you here in community AMI. Where is it going to show you? In community AMIs. तो अभी वो नहीं दिखा रहा है, I agree with you. That is because इसको अपडेट होने थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी अभी मैंने उसको पब्लिक किया है, isn't it? So I don't want to refresh and waste my time. But it will come here. Within some time, it will come. Okay. Okay. ये वाला पॉइंट समझ में आ गया, तो तुमको ये एड्रेस इंपॉर्टेंट हो गया? Definitely. So I will give you that in the script. बराबर है कि नहीं? तो यहाँ पे देखो ये ऊपर है ना, मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ तुम्हारे सामने, and I am mentioning web server. So you must be wondering, किसका भाई web server, लेकिन किसका? That's a good question. So let's come back here. Okay. Now what I'll do is I will type archive. Oh wow, cloudera.com CM5. Okay. कोई मदद नहीं कर रहा है मेरी यार। तो एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ जाते हैं। ओके, यहाँ तो करेगा डेफिनेटली। archive.cloudera। तो ये cloudera तो तुमको पता ही होगा, isn't it? Cloudera is a brand, $16 billion company, and they have a product which is CDP, CDH, HDP। ये सब किसके प्रोडक्ट्स है? Cloudera के। तो मैंने यहाँ पे टाइप किया CM5। ये भी मदद नहीं कर रहा वैसे। ओ कर रहा है यार, अमेजिंग, आई लाइक इट। See, the moment I typed CM5, मतलब मुझको Cloudera Manager version5 डाउनलोड करना है, तो ये मुझको बोल रहा है कि साइन इन करना पड़ेगा, यूजर नेम पासवर्ड डालना पड़ेगा, and to do that you will have to pay somewhere around maybe 20 lakhs, 50 lakhs, 4 crores. That depends on the revenue of your organization and how many nodes you are going to take. भाई ये जो प्रॉब्लम है, बड़ा प्रॉब्लम है, तो प्रैक्टिस कैसा करेंगे हम लोग? तो क्लाउडेरा बोलता है प्रैक्टिस करना है, तो डोंट प्रैक्टिस ऑन दिस, प्रैक्टिस ऑन द version 7। तो मैंने version 7 डाल दिया।
अब उसके लिए भी पासवर्ड मांग रहा है, यूजर नेम एंड पासवर्ड. So don't worry about that as well. We'll come to that little later. Okay. But right now what we'll do is वर्जन 6 मार्केट में ज्यादा कोई यूज ही नहीं कर रहा है. तो जिनका ये दिमाग में क्वेश्चन आया होगा ना, बीच में से 6 किधर गया, तो उसका आंसर, बीच में से जैसे विंडोज 7 आया था उसके बाद विंडोज 8 आया, फिर क्या आया, सीधा 10 आया, तो 9 किधर गया. हाँ, जो जवाब आपका वही जवाब हमारा. वेलकम टू क्लाउड एज. Okay, now what we'll do is we'll go back to the script. अब तुमको क्या समझ में आया? You have understood about this particular problem, isn't it? Now problem number 2. अच्छा, ये सर्वर किस चीज का, ये क्वेश्चन है ना. हाँ, I like that question. चलो ठीक है, पहले उसको निपट लेते हैं. So I will copy this once again and go back to launch instance. देखो, my community MIs में आ गया अभी, which means now you can also see that from your account, and make sure you are in the Mumbai data center. If you're in any other data center and you're searching for it, so हमको तुम्हारे लिए प्रार्थना दुआएं करनी पड़ेगी. We will have to pray for you. ठीक है, so I'm going to take this from community. Let's select. Okay, and I'm going to take C4 because I need little speed. Okay, तुम्हारे केस में you don't need any speed. You can practice on M4. That is, मुझको किस में डालना है इसे? डालना चाहिए प्राइवेट में. अगर तुम ये सोच रहे हो कि इसके मुझे प्राइवेट में डालना चाहिए, तुम करेक्ट सोच रहे हो. मैं लेकिन प्राइवेट में नहीं डालूंगा क्योंकि मुझको एक क्वेश्चन है ना स्टार्टिंग वाला, वो ऐसे अधूरा छूट गया है, उसका आंसर करना है. तो इसके लिए आई एम गोइंग टू पुट दिस इन पब्लिक. इन पब्लिक आई हैव मल्टीपल ऑप्शंस. बी का भी ऑप्शन है, और अब मुझको याद नहीं आ रहा यार, पहले मैंने ए के अंदर डाला था क्या शायद. सो लेट्स टेक ए, है ना, टू बी ऑन सेफर साइड. सो हियर इट इज, स्पीड के लिए, नथिंग एल्स, नॉट इवन टू बी ऑन सेफर साइड, जस्ट फॉर द स्पीड, सेक ऑफ स्पीड. अब मुझको यहाँ पे ना इनेबल करना पड़ रहा है, विच इज जस्ट टू सेव मनी, है ना. वो बोलते ना अपना डीएनए, इंडियंस का डीएनए जुगाड़ू है. यस, हम ढूंढ के निकाल लेते हैं कुछ ना कुछ जुगाड़. डोंट वरी, पैसे बचाने की जहां बात आती है, हम वो हमारा डीएनए में वो. डोंट वरी, रिलैक्स. तो मैंने क्या किया, वो नैट इंस्टेंस डिप्लॉय नहीं किया था, और उसके बदले में मैंने क्या किया, तुमको बोला कि व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू कॉन्फ़िगर दिस पर्टिकुलर सिक्योरिटी ग्रुप. ओके, देखो मैं अगर वीपीएन यूज करूंगा ना, तो वैसे भी मैं थोड़ा सेफ हो गया. व्हाई? बिकॉज आई एम प्रैक्टिसिंग फॉर से मे बी 4 आवर्स, मे बी 6 आवर्स. हैकर को बेचारे को डिस्कवर करने के लिए कम से कम 6-7 घंटे लगते, या उसकी स्क्रिप्ट को फायर किया उसने तो उसको पहले तो हमारे मशीन को तो करेगा भी नहीं, लेकिन अगर समझो अटैक कर भी दिया तो उसको टाइम लगता है. इट डजंट हैपन जस्ट इन मिनट. ओके, इट टेक्स मंथ्स एंड मंथ्स, many a times. Let me review and launch. Okay, चाबी हमारी सेम रहेगी. Throughout the key is the same, right? Which is also not considered to be a best practice. Why? ऐसा क्यों? Because many a times in the organization, तुम्हारा वेब सर्वर कोई और बना के देगा, वेब सर्वर की टीम बना, अरे ये सब इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, टेक महिंद्रा, ऑल दीज एसेंशियल प्रोसेस ड्रिवन कंपनीज. यस, टिकट रेस कर वो करके देगा, टिकट रेस कर वो करके देगा, टिकट रेस कर वो करके देगा. तो मेरे को काय को लिया तूने? अरे भाई, जब सब रेडी हो जाएगा फिर तेरा काम स्टार्ट होता है. आधी जिंदगी टिकट, isn't it? तो कभी कभी वो टिकट जिसको रेस करते हैं ना, तो तुमको पता होना चाहिए कि उसने क्या
मिस्टेक किया है। इसके लिए सारा प्रैक्टिस तुमको करना पड़ता है। इन अदर वर्ड्स, यू गेट अ जॉब इन अ स्टार्टअप, से फॉर एन एग्जाम्पल, तो तुम्हारा क्या फायदा है? सब कुछ तुमको करना है, सब, एवरीथिंग, you do everything. Some people don't like it, and some people they just love it. मैं क्या बोला अभी थोड़ी देर पहले? वेब सर्वर। तो जो लोग भूल गए उनको एक बार रिमाइंडर दे देता हूँ। सी व्हेन आई एक्चुअली टाइप्ड आर्काइव ब्ला 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 क्लाउडेरा, तो उसने मुझसे क्या मांगा? यूजर नेम पासवर्ड, विच मीन्स लाइसेंस का पैसा भर, इजंट इट? अब मैंने क्या किया, तुमको बोला कि मेरे पास है ना उसका एक रिपोजिटरी है, क्योंकि हम लोग थोड़े पुराने खिलाड़ी है तो हमारे पास उसका रेपो है। एंड इफ वी वांट वी कैन अरेंज एनी अदर रेपो, बिकॉज क्लाउडेरा में 26 लोग काम करते। यस, दैट्स हाउ इट इज। सो डोंट वरी अबाउट दैट। सो आई हैव टेकन दैट repository, I've kept it on a machine, and in that machine I will log in first so that तुमको कुछ practically देखने मिले। That machine has a public IP address, that means it has a threat of DNS spoofing, isn't it? अब तुमको तुम्हारा जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो मैं देखना चाहता हूं। जो लोग प्रैक्टिस करते हैं वही उसका आंसर दे पाएंगे, जो प्रैक्टिस नहीं करते उनके लिए वेलकम टू क्लाउड एज once again. So I'm selecting web server, load, okay, and I need to punch in up IP address here, correct? So I will select an IP address. You tell me, ये तुम इम्तिहान की घड़ी है, which IP address should I take? देखो, सच तो यही है, प्राइवेट। लेकिन कभी कभी क्या होता है मालूम है तुमको? मालूम है इंडियंस को इतना डिमांड नहीं क्यों है टेक्नोलॉजी में? अरे दोस्त, वही अपना डीएनए, जुगाड़ू डीएनए जो है, बोले ये लोग कुछ ना कुछ करके चला के दिखाएंगे। हाँ, कुछ भी कर लेंगे लेकिन चला के दिखाएंगे। लेकिन हमारे को अभी चलाना इंपॉर्टेंट नहीं, हमारे लिए सीखना इंपॉर्टेंट है, लर्निंग। सो सम पीपल दोज हु आर सेइंग प्राइवेट, उनको पहले मैं खुश कर देता हूं। ओके, लेट्स हैव अ लुक। आई एम सेविंग दिस, आई एम क्लिकिंग ऑन ओपन। अब क्वेश्चन ये है, क्यों कनेक्ट नहीं हो रहा है? हाँ, सिक्योरिटी ग्रुप, दीपक ने देखो बराबर बताया, सिक्योरिटी ग्रुप बराबर नहीं है, लेकिन जिसने पहले बोला उसी का नाम लूंगा ना मैं। ओके, सो विल गो बैक हियर। अब लोगों को समझ में आ गया कि जिन लोगों ने पब्लिक बोला था वो क्यों करेक्ट था इस केस में। यू नो व्हाई? क्योंकि अगर मैं पब्लिक से कनेक्ट करता तो वो कनेक्ट हो जाता था क्या? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। सो व्हाट विल डू इज विल मेक देम हैप्पी एज वेल, है ना? बिफोर दे लुक एट दी कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ता है अपने को, बस दैट्स इट, दैट्स योर जॉब। मैंने पब्लिक आईपी एड्रेस पेस्ट किया है, सेव किया, ओपन, एंड इट इज स्टिल नॉट डूइंग इट। सी, सो जो लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं ना, वो तो सर खुजा खुजा के आज टकले होने वाले। डोंट वरी, रिलैक्स, है ना? उनकी तो हालत खराब हो जाएगी, और जो प्रैक्टिस कर रहे दे विल एंजॉय। दैट्स हाउ इट वर्क्स। सो लेट्स गो बैक टू द सिक्योरिटी ग्रुप, एडिट। कुछ लोगों को उस वक्त समझ में आ गया था व्हेन आई एक्चुअली कॉपीड दिस पर्टिकुलर ग्रुप का आईडी, दिस वन, है ना? सी, सो आई कॉपीड दिस, आई एम एडिंग अ न्यू रूल, ऑल ट्रैफिक। ऑल ट्रैफिक मतलब आजा वाट लगा दे, ऑल ट्रैफिक, है ना? बट इन गुड लैंग्वेज, लैन। आईटी वाले जो रहते हैं ना, बहुत सर्किट खोपड़ी के रहते हैं बहुत सारे, तुमने देखा होगा। अब उनके पैसे की वजह से तुम उनको कुछ बोल नहीं पाते, सच तो यही है। ओके, so what I'll do is I will close this. Now the question arises, will I be able to connect with the public address? देखो,
I'm trying to connect with the public address. I'm not. So what I'll do is I'll close this. I will connect once again. This time I'm going to load the private address. So ये मैं हटाऊंगा. Private address copy करूंगा यहाँ से. Web server. 10 दिखा ना starting में 10. आगे देखने की जरूरत ही नहीं है. हाँ. जिसको अलाउ किया वही आया ना. सब लोग थोड़ी आ सकते हैं. That's how it works. Okay, it is actually asking me to restart the machine. है ना? I just scrolled up. देखा? System restart required. Sudo apt update. Oh my God. Sudo reboot. No, upgrade is not required. अब ये है ना reboot के लिए गया है. Which means I have to wait for some seconds. And it comes until it comes back. But before that, एक question है. अब है ना जो हमने NAT गेटवे से के टाइम पे एक अधूरा क्वेश्चन पूछ के छोड़ दिया था, उसको कंप्लीट करने का टाइम आया. That is, do you notice I do have a public address for my server, web server. My workspace has a public address. And when I'm going to take some machines, okay, I'm going to take these machines. So let's take it from here. Okay. तुमको कौन सा लेना है? M4. अच्छा, लेना M4 है, लेकिन इंटरव्यू में M4 कभी बोलना नहीं. अरे यार क्या मुसीबत है ना. देखा C4, प्रैक्टिस किया M4 और बोला D, है ना? D1 D2. वेरी नाइस निखिल. H1. तो बोलने के टाइम पे तुमको H1 D2 बोलना पड़ेगा. तो तुम M4 और C4 बोल सकते हो, लेकिन ऐसा बोलना पड़ेगा. See, while I was doing my POC, at that time I took M4 because that budget was very tight and I could not take heavy machines. However, while we did cluster planning and capacity planning, at that time we took H1 D2, whatever you want to say, according to your planning. देखा, सब फिट हो गया ना जगह पे. That's how it works. So how many machines should I take? तो एक मेरा होगा गेटवे, एक होगा क्लाउडेरा मैनेजर का मशीन, 3 होंगे मेरे डिफॉल्ट डेटा नोड्स मिनिमम. तो टोटल कितने हुए? 5. सो आई विल टेक 5 फॉर नाउ. ओके, बिकॉज माई फोकस इज योर प्रैक्टिस राइट नाउ. क्योंकि आगे जाके फिर वो सेशन जो है बहुत आसान लगेगा. दैट्स हाउ इट इज, स्टेप बाय स्टेप. आई एम पुटिंग दिस इन पब्लिक. Why? Because I don't have a NAT gateway. Why का आंसर सिंपल है. I don't have a NAT gateway. अच्छा, why am I not worried about getting any attacks like DDoS attack? Yeah, definitely, because I'm using a VPN. So I'm getting my protection from there. तो मेरा NAT gateway का पैसा बचा है ना महीने. अच्छा, कंपनी में VPN भी यूज होगा, NAT गेटवे भी यूज होगा, सबनेट भी यूज होगा, फायरवॉल भी यूज होगा, एप्लीकेशन फायरवॉल भी यूज होगा, लोड बैलेंसर भी यूज होगा. मतलब कितना डरते हैं ना ये लोग, है ना? ऐसा लग रहा है ना. ना 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 ना, ACL भी यूज होगा. यस, वो डरते नहीं है दोस्त. इससे ये पता चलता है कि हैकर लोग कितने स्मार्ट है, और उनके स्मार्टनेस की वजह से तुमको थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना पड़ता है. स्मार्ट पीपल आर मेकिंग यू स्मार्टर. से थैंक यू टू ऑल द हैकर्स इन द वर्ल्ड व्हेन यू मीट देम. ओके, तो अपना ये मशीन ले लिया मैंने, एक के अंदर ढकेल दिया. सो लेट्स गो 5 मशीन्स के साथ. अब यहाँ पे है ना एक कैच है. कैच, इसको हम लोग बोलते हैं चीट शीट. क्या बोलते हैं?
आई एम डूइंग अ स्मॉल चीट शीट विथ यू. चीटिंग नहीं है, चीटिंग अलग चीज है और चीट शीट अलग चीज है. चीट शीट का मतलब होता है टाइम बचाओ आंदोलन, isn't it? चीटिंग थोड़ा सा डिफरेंट होता है ना. दैट्स हाउ इट इज. वो वाइफ और हस्बैंड लोग के लिए मुबारक हो. हम लोग नहीं, हमारे यहाँ पे कंटिन्यूस मॉनिटरिंग होती है. किया के पकड़ा गया. अब क्वेश्चन ये है कि वो चीट शीट है क्या, है ना, वो दिखाता हूँ. सी, इफ यू कम बैक टू द स्क्रिप्ट एंड यू विल से सर वो वाला इमेज भी मेरे को पब्लिक करके दो ना जो अभी आपने लिया था. हाँ, इसे कहते हैं अटेंशन. तो वो मैंने पब्लिक किया क्या, नहीं किया. आई मेड दिस पब्लिक फॉर यू only. That I'm not making public. For that I am giving you a solution. This is that solution. अब ये AMI है. I'm taking this AMI. I'm coming back to instances so that we can launch instance. I am pasting this in the AMI wala section. Okay. इतना स्लो है यार ये. आया ना ये सामने. तुमको करना क्या है, तुमको ये सेंटोस जो है ना इसको सब्सक्राइब करना है. मैंने सिलेक्ट वर्ड की जगह पे सब्सक्राइब वर्ड यूज किया है. Isn't it? तो ऐसा स्क्रीन आया तुम्हारे सामने. प्रोडक्ट डिटेल, प्राइसिंग एंड ब्ला ब्ला ब्ला. 750 hours is free. Don't have to worry about anything. तो इसको भी छोटा करना पड़ेगा because I can't see that button down. है ना, यहाँ पे नीचे एक बटन है देखा, सब्सक्राइब का. So I'm not doing that subscribe. Why? Because I've already done that. So you all have to do that. उसके बाद क्या, ये जो मेथड है ना ये तुमको याद रखना है. क्यों याद रखना है? बिकॉज व्हेन यू सब्सक्राइब टू एन इमेज, कंपनीज में भी इसी तरीके से काम चलता है. यू एक्चुअली हैव टू सब्सक्राइब इन द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन and that comes into your subscription list. That is a different question whether there is a licensing cost, yes or no. In this case, there is no licensing cost because it is CentOS. So I'm going back to instances. अब देखो instances में these are the instances which is supposed to be, यार ये बड़ा किया तो बहुत बड़ा हो गया. But it's okay. This is little better. I told you ना, ये हमारा वेब सर्वर है, isn't it? And this is my workspace. I'm connected to my workspace with a what? VPN. तो जो लोग फ्रेशर्स हैं, ये उनके लिए इतना मगजमारी करना पड़ रहा है मुझको. तो ये बाय हार्ट कर लो, मैकेनिकल ग्रेजुएट्स एंड ऑल अदर ग्रेजुएट्स, मेमोराइज दिस. कभी तुमको उन लोगों ने डाउट गया तुम्हारे पे, तुम्हारी एज कम है और तुमको इतना बड़ा काम मिला तो कैसे मिला. So they ask you such questions. Acha, just tell me, how did you connect? How did you used to access your cluster? Access कैसे किया cluster को? तो तुम बोलोगे, you know that in my laptop VPN is pre-configured, and as soon as I connect to the internet, it connects me directly to the workspace that is in the data center of my project or my client. In that workspace, अब ये workspace सामने है, I log into that workspace. तब वो वर्कस्पेस में तुम कैसे लॉगिन करते हो, सिट्रस से करते हो कि ऑटो लॉगिन है, वो सब डिफर करता है कंपनी टू कंपनी. तुम यू कैन से दैट यस आई एक्चुअली लॉग इन टू दैट वर्कस्पेस एंड इन दैट वर्कस्पेस आई वर्क ऑन माय क्लस्टर थ्रू अ gateway. Of course, if you're a little more worried about what kind of a security we were using, so this complete cluster is in a private network, it's in a private subnet. अब ये बात तुमने सुन लिया ना, और तुम मुझको बोल सकते हो ना अभी, लेकिन ये तो मेरे को सब पब्लिक में दिख रहा है. आई एम लुकिंग एट एवरीथिंग इज इन पब्लिक. तो मैंने शुरू में ही बोला ना, नेट लिया नहीं है जो मैं आगे लेने वाला हूँ. यस, आई एम गोइंग टू शो यू दैट, डोंट वरी. बट आई वॉन्ट यू टू प्रैक्टिस विदाउट गेटिंग हैवी बिल्स. तो जब तुम्हारे पास आईपी एड्रेसेस सब ऐसे एक्सपोज्ड होते हैं, मतलब पब्लिक आईपी एड्रेस इतने सारे हैं, तो यू डोंट हैव जस्ट वन थ्रेट, you have 1 2 3 4 5 6 7 threats.
यहाँ एक से डर लगता है, इधर साथ साथ है. Getting the point? But to save money, we are doing that. तो ये पॉइंट याद रखना है, बोलना मत. तुमको बोलने के टाइम पे क्या बोलना है? इट्स ऑल प्राइवेट आईपी एड्रेस. जो तुमको देखना है आगे जाके सेशन में दिखेगा. या कमिंग सेशंस. रिलैक्स. Meanwhile, right now our focus is on something else. Okay? हमारा फोकस ये है कि ये जो वेब सर्वर है ये हमारा खुद का है. आया था तुमको अभी थोड़ी देर पहले archive.cloudera.com के ऊपर, वो किसका है? वो क्लाउडेरा का है. तो क्वेश्चन ये है कि क्लाउडेरा ने वो सर्वर क्यों बनाया? Why? ये लिनक्स वाले लोग इसका आंसर कर सकते बहुत जल्दी. हाँ, एग्जैक्टली. टू शेयर द repository. If you want to say packages, you want to say parcels, you want to say repo, you want to say patches, you want to say updates, you want to say upgrades. ठीक है भाई, तेरी भाषा तेरे प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करती है. या इट्स ओके, वी आर ओके. लेकिन ओपन सोर्स कम्युनिटी में उसको हमेशा क्या बोला जाता है? रिपोजिटरी, रेपो. ओके. सो अभी वो जो रेपो है, अगर मैंने क्लाउडेरा से डाउनलोड नहीं किया और यहां से डाउनलोड किया, तो मेरा जो पब्लिक एड्रेस है ना, वो ये हो जाएगा. दिख रहा है ये वाला? दिस इज गोइंग टू बी माय पब्लिक एड्रेस. Instead of cloudera.com, it is amazonaws.com. Ah, very nice, Yakub. Very nice. Because of the DNS. तो क्लाउडेरा का DNS क्लाउडेरा का है, इसके लिए वहां पे क्लाउडेरा का डोमेन दिख रहा है, और यहाँ पे AWS में इसके लिए AWS का डोमेन दिख रहा है. And we can change that if we want to. But many organizations, they don't want to do that because any which ways, it becomes responsibility of AWS to take care. So cost cutting is also important. याद है ना, आर्किटेक्ट के 5 पिलर, cost optimization, never forget that. Of course, security, reliability, and all that is there. Operational excellence and performance. तो अब मेरे पास कितने मशीन है? सी 1 2 3 4 5. ये 5 मशीन मैंने सेंटोस ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है इसके अंदर, प्री कॉन्फ़िगर्ड. इसके लिए यहाँ पे देखो, इसका जो इमेज का नाम है वो क्या लिखा है? देखो इधर, ये है ना इमेज आईडी. इसके बाजू में क्या लिखा है? सी CentOS 7 prerequisites done, isn't it? So the question is, how did you do it? And that is not a bigger question. How did you do it? The bigger question is, whatever the prerequisites are, how would we come to know why should we do it? That is an interesting question. So interviewers will most likely ask you these questions. क्या जो तुमने कर्नल ट्यूनिंग किया था ना, तुम बोलोगे यस. तो उसमें तुमने IPv6 डिसेबल क्यों किया था? IP टेबल डिसेबल क्यों किया था? THP डिसेबल क्यों किया था? Tell me what is defragmentation in Linux. Tell me what is swappiness in Linux. What is a swap partition in Linux? Isn't it? These are the questions they will ask you. What is SSSD? What is NSD? What is NTP? ये सारे questions वो तुमको पूछेंगे, और वो तुमको क्या करना है? By heart कर लेना है. You have to remember. Isn't it? So when you remember that, life becomes easy for you. Okay, तो उसका सेशन अलग से होगा, वो आज मैं लेने वाला नहीं. बट आई वांट कि इसको कुछ नाम दिया जाए. तो आई एम गोइंग टू गिव अ नेम, क्लाउडेरा मैनेजर. बिकॉज ओ ये क्या मुसीबत है? सी क्लाउडेरा मैनेजर. And this is CDH. See,
CDH। तो एक बात तो समझ में आ गया, CM अलग है, CDH अलग है। आया कि नहीं आया? जब भी तो मैं ऐसा नाम दे रहा हूं, अलग अलग। सी, अब जो लोग बेचारे सोचते हैं कि मैं वीडियो देख के कर लूंगा काम मेरा, तो वो अटक जाते। कहाँ अटकते? यहीं अटकते। तो उसमें से एक मेरा जो है ना, CDH नहीं है, वो क्या है? गेटवे। गेटवे। अब तुम बोलोगे ना गेटवे क्या होता है? यस, चलो इसको रीनेम करेंगे गेटवे। परफेक्ट। सो एज वी प्लान्ड समथिंग एंड वी आर टेकिंग, तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन है, CDH में मेरा नेम नोड, डेटा नोड, रिसोर्स मैनेजर, ये सब आ जाएगा ऑटोमेटिक, इजंट इट? ओपन सोर्स में हडूप 2 कैसे इंस्टॉल करना है, ओपन सोर्स में हडूप 3 कैसे इंस्टॉल करना है, वो हम लोग बाद में देखने वाले हैं। ओके, बट नाउ वी आर मूविंग अहेड विद दीस सेशंस सो दैट कुछ प्रोग्रेस हो। ओके, और तुमको एक्चुअली जाना किधर है? जाना किधर है? गुड क्वेश्चन। तो उसके लिए एक काम करेंगे हम लोग, if someone questions, is there any one product that does everything? So that is Cloudera distribution of Hadoop. If somebody questions, no, I'm just looking at ETL point of view, and I'm just looking at one component, and I'm just looking at my use case is this. Oh yes, we'll take care of that also. तो हम लोग गूगल का बिग क्वेरी देखेंगे, Amazon का Redshift देखेंगे, okay? Then we are going to touch ThoughtSpot. लॉजिक समझ में आया? ऑफ कोर्स तुमने अगर नोटिस किया होगा तो देयर इज अ प्रोडक्ट कॉल्ड Databricks व्हिच इज ऑन 2 लेयर्स। लेयर नंबर डेटा साइंस का एक लेयर है, और दूसरा कौन सा लेयर है? क्लाउड डेटा प्लेटफॉर्म, isn't it? Yes, it is there. So don't worry about that. ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा टेढ़ी खीर है, इतना इजीली सबको समझ गया होता तो फिर क्या ही बात थी। But now you can see the ladder goes right on top, augmented analytics. In any platform, it doesn't matter. Okay, okay, so let's go back and understand the basics so that you can show some experience. Now I want to connect to this CM first point. नहीं, हमने वेब सर्वर वाली बात अधूरी छोड़ दी थी। I just realized, I'm sorry about that, क्योंकि हमने इसको रिबूट करने बोला था ना, तो वहां से रिबूट करने के बाद let's restart the session. See, I have restarted the session. I'm going to var, देखो अगर मैंने मुझको अगर इंस्टॉल करना है क्या सर्वर, तो आई विल जस्ट टाइप sudo apt install apache 2, एंटर। तो क्या मिलेगा मुझको? एक वेब सर्वर मिलेगा। वेब सर्वर जैसे ही रेडी होगा तो उसमें एक फोल्डर बनाया जाएगा, वो ये है। उस फोल्डर में एक फाइल होगी, जिनको HTML आता है उनको पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडेक्स HTML, isn't it? They definitely know that. अब ये इंडेक्स HTML कुछ लोग सोच रहे हैं कि मैं देखना चाहता हूं कैसा दिखता है, तो देख ले भाई, कैट करके दिखा दिया मैंने, isn't it? However, इसमें जो लोग थोड़ा बहुत जानते होंगे, they will understand I am actually supposed to type this IP address config, this IP address, which is a private IP address. I am just pasting it here, watch, and I am hitting enter. तो जो मैंने तुमको बोला sudo apt install apache 2, तो उसने इंस्टॉल किया। अब फर्क इतना है कि मैंने तुमको दिखाया नहीं। Now look at this. You should replace this file, है ना? Located at,
तो वो क्या है, जिसने बाइनरी बनाया वो बता रहा है तुमको कि ये एड्रेस पे जाना है और तुमको क्या करना है, अपने कंपोनेंट्स को वहां पे रखना है जो हमने रख दिया है, तुमको सिर्फ देखना है। CDH5.16 CM516। तो से फॉर एन एग्जाम्पल यू गॉट अ जॉब एंड दे आर टेलिंग यू कि यार देख हमारा जो है ना, I don't want to download again and again from Cloudera because we are on a NAT gateway and that will be very costly for us, and we don't want the unnecessary cost to incur upon us and this that all वो गाड़ी गाड़ी अंग्रेजी में बोलेंगे. So we want you to deploy our own web server. बराबर है ना? तो तुम्हारे लिए 2 स्टेप है, याद रखना. स्टेप नंबर 1, टार बॉल को अनटार करना है. क्या करना है? अनटार. अनटार करने के बाद CDH का जो फोल्डर है उसको यहाँ, CM का फोल्डर यहाँ पे, दोनों को भी अनटार करके तुमने ढकेल दिया. किधर? var www html के अंदर. बस हो गया काम. देखना है तुमको? चलो दिखा देता हूँ. I'm copying it purposely for you. Okay, see. तो जैसे ही मैं लाइसेंस डालूंगा ना, लाइसेंस किसका लाइसेंस? Say for an example, I'm going to archive.cloudera.com CM5 एंड यहाँ पे मैंने यूजर नेम पासवर्ड डाल दिया. ओके, विच इज सम ह्यूज यूजर नेम एंड सम ह्यूज पासवर्ड. अभी तो लात मारेगा वो अलग बात है. तो जैसे ही मैं एंटर मारूंगा एंड इफ इट इज करेक्ट you will come to a screen like this. The only difference is your address will be different. दिख रहा है तुमको? अभी कौन सा एड्रेस है? प्राइवेट, बिकॉज दिस इज योर प्राइवेट वेब सर्वर. और क्लाउडेरा का क्या रहेगा? पब्लिक. अब मैं देखना चाहता हूं तुम में से कौन है ज्ञानी जो ये बताए कि क्लाउडेरा के अंदर इतनी हिम्मत कैसे आई कि उसने पब्लिक में रेपो को रखा. व्हाट गेव देम दैट एबिलिटी टू डू सो? ना ना ना, दो तो तुक्के लगे. सना ने तो ऐसी तुक्का लगाई, वाह वाह, मेरे को बुखार आ गया. लेकिन सना ने लिखने के टाइम पे उसको क्या लगा होगा? ये देखो, सौरभ को देखो, लोड बैलेंसर. सौरभ को लगा कि मोगैम्बो खुश होगा. हाँ, वेरी नाइस सुजैफा, वेरी नाइस. आई लाइक योर थॉट प्रोसेस. देखा तुमने? आंसर देखा तुमने? बाबूजी, ये देखो इधर, SSL. हाँ, ट्यूबलाइट जल गई है ना. हाँ, TLS, HTTPS, isn't it? I'm coming back here. क्या लिखा है देखो? हाँ, मुझको चाहिए भी नहीं ना, मैं अंदर इंटरनल प्राइवेट है ना भैया. देखो घर के अंदर तो अपन है ना वो चड्डा पैजामा और लुंगी, है ना. साउथ इंडिया में तो बाहर भी आ जाती लुंगी पहन के, वो अलग बात है. दैट्स अ डिफरेंट थिंग. सो वो लोग बोलते हैं पूरा स्टेटिच अपनी फैमिली है दोस्त, टेंशन नहीं लेने का. विच इज गुड है. आई लाइक दैट थियरी ऑल्सो. अब ये वाला लॉजिक समझ में आ गया. परफेक्ट. सो नाउ लेट्स गो बैक टू द काला पानी. अब तुमको ये समझ में आ गया कि ये जो प्राइवेट DNS है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और इसमें ना सिर्फ देखना है, तुम करना कुछ नहीं, सब कुछ किया हुआ है ना. लेकिन जब तुमको करना पड़ेगा तो 2 स्टेप जो मैंने तुमको बताया वो क्या था? टारबॉल को अनटार करना है और उसको var www html फोल्डर में रखना है. तो अगर तुमको इंटरव्यू में किसी ने पूछा तो तुमको बस इतना ही बोलना है, डेफिनेटली द रिपोजिटरी हैज टू बी अनटार्ड एंड वी कीप द CDH and CM in the web server. If you want to say the path, yeah, you can say that. HTML फोल्डर बोलते ज्यादा करके, var फोल्डर बोलते. जो लोग, जो एक्सपीरियंस बंदे होते हैं ना, वो हमेशा टक्का सा आंसर करते हैं var फोल्डर में. और जो फ्रेशर होगा
var/www/html। क्या जरूरत है भाई? बोल वार फोल्डर में रहता है, टेंशन नहीं, वो टैब मार के निकाल लूंगा मैं, उनको भी समझता है ये। Okay, now when you're doing the same thing, you're installing Apache, जो मैंने बोला ना Apache server, तो उसको तुम इस तरीके से भी इंस्टॉल कर सकते हो HTTPD से, बट इट्स ओके। देखो एक पॉइंट है, ये जो स्क्रिप्ट है, this particular script, okay, you will follow. How are you going to follow? You will first use this AMI, which is version 7. तो अभी मेरे पास जो AMI है, जो मैंने लिया है cloudera manager के लिए, let's copy private IP address and connect so that you are on the same page. दिख रहा है CM? I'm loading and pasting the IP address. Then I'm saving this and opening it. So I'm connected now to what? Red Hat release to the machine called CM. मेरा ऐसा इरादा है इसको CM बनाने का. Okay. Okay. Now the next part is I want a script. That is a Python script. See, ये जो सेशन है ना, इस सेशन को बोरिंग ना हो जाइए, इसके लिए इसका मेथड मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, अदरवाइज बहुत हेक्टिक लगता है वो लोगों को. गेटिंग द पॉइंट? वी डोंट वांट दैट सिचुएशन. सो व्हाट वी हैव डन इज वी हैव मेड सम पार्ट्स कि यार इसके पार्ट्स बना लेते हैं और लेट्स गेट रिड ऑफ इट. Okay, so what I want is I want that Python का file to show you. Just give me 1 second. Let me see, where is it? Just to make your life easy. Okay. So it's my fault. I forgot the name. You know why I forgot the name? Because I call it kernel tuning. Anybody coming from any database background, Oracle or anything, they understand this term very fast. And when they interview you, they ask you similar thing, similarly. कि कर्नल ट्यूनिंग क्या है? कि तो हम लोग जब भी रेज्यूमे बनाएंगे तो उसके अंदर भी हम लोग कर्नल ट्यूनिंग लिखते हैं, प्री रिक्विजिट्स नहीं लिखते. Okay, so what I'll do is it's better to अब समझा मैं प्रॉब्लम क्या है. So what I'll do is I'll show you certain things. I'm first doing ls to show you there is nothing over here. Can you see? ls किया मैंने तुम्हारे लिए. Then I'm going to sudo su. Okay. अब यहाँ पे मैं ls कर रहा हूँ, मतलब अभी रूट के अंदर मैं ls कर रहा हूँ. तो यहाँ पे ना कुछ फाइल्स है जिसका एक्सटेंशन है .sh. Oh, is it? Sorry. Now I think you should be able to see. Okay. So some people they struggle. Let's exit. मैं CentOS पे आ गया. ls करके दिखाता हूँ. There is nothing over here. I'm doing sudo su. Exit.
अरे यार, sudo su cd, अब मैं ls करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे ना एक्सटेंशन डॉट sh का है at the end. You can notice that. Okay, so there are certain files like check prerequisites. So I'm going to run that file. तो वहां ऊपर देखो क्या लिखा हुआ आया स्टार्टिंग में. I'm going right on top to show you a particular file. It says cloudera manager and cdh prerequisites check blah 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 version. तो ये जो अभी इसने चेक किया, चेक है ना, उसमें ये सारी चीजें चेक किया. तो जैसे मैं तुमको बोल रहा था कि you will require some certain things before the cluster is ready. तो जो कर्नल है, लिनक्स का जो कर्नल है, वो तुमको पता है कि इट्स अ मेन फ्रेम ऑपरेटिंग सिस्टम. इट इज डिजाइन फॉर ऑलमोस्ट एनी प्रॉब्लम that IT can have. You can solve almost anything from here. See, so we actually call this a smoke test. क्या बोलते हैं इसको हम लोग? Smoke test. मतलब जैसे ही मैंने prerequisites check रन किया और उसने चेक किया कि स्वापीनेस है कि नहीं, है ना, ट्यूनिंग है कि नहीं, ऐसी ऐसी लिनक्स इनेबल्ड है या डिसेबल्ड है, all of this information. Now the question that is, why should you disable SE Linux and why should you not have a swappiness, and IPv6 is supposed to be disabled, IPv tables are supposed to be disabled. तो ये सब क्या होता है and why it is supposed to be disabled, that we will deal later, है ना, not to waste any time on this particular. तो say for example तुमने Cloudera को बोला कि मेरे को एक प्रॉब्लम आ रहा है, तो उन लोगों ने बोलेगा have you done the smoke test, तो send me the result. तो तुम रिजल्ट में क्या भेजोगे? पास पास पास, ऐसे ही भेजोगे ना. देखो, चेक प्रीरेक्विजिट्स तुमने चेक किया, इसका जो भी रिजल्ट है समझो मैंने उसको इस फाइल में डाल दिया. नाउ आई विल गो टू रिजल्ट फाइल. इसमें नैनो नहीं है. ओके, आई गो विद vi बिकॉज नैनो इज नॉट इंस्टॉल्ड. रिजल्ट, तो इसके अंदर मेरी रिपोर्ट आ गई ना, आई गई रिपोर्ट पास की, कौन सा वर्जन है एंड दिस दैट ऑल एवरीथिंग. मैंने उनको बोला कि देखो मैंने चेक किया, ये डेट टाइम सब कुछ आ गया इसके अंदर. नाउ यू टेल मी वेदर यू आर रेडी टू हेल्प मी. ओके, so they will say yes, we will help you because all the tests are cleared. Now the question is, you have a question, that is, जब हम तुम्हारी स्क्रिप्ट को फॉलो करेंगे, कौन सी वाली, ये वाली, जिसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये AMI लेंगे. तुम ये AMI लेने वाले हो? यस, लेने वाले हो. उसमें तुम अपडेट करोगे, wget इंस्टॉल करोगे, नैनो इंस्टॉल करोगे, वेब सर्वर इंस्टॉल करोगे. एक्चुअली वेब सर्वर की जरूरत नहीं है. Only on one machine you need a web server. That's the reason I am using an Ubuntu web server. So you can skip this. Skip this, okay? I will just remove this. You can skip this part also. You don't need this. And you can skip this also. Life set हो गई. उसके बाद you are going to install the driver. अब क्या है ना, जिन लोगों ने कभी जिंदगी में इंस्टॉल किया होगा सेंटोस के ऊपर ओरेकल से डाउनलोड करके जावा को, उनको पता होगा कि हाउ डिफिकल्ट इट इज. तो मैंने क्या किया है, वहां से ना ऑलरेडी ये रेपो को मेरे उसके ऊपर रखा है, S3 के ऊपर रखा है. ऑफ कोर्स इट इज अ कॉस्ट टू द कंपनी, बट इट मेक्स लाइफ इजी फॉर यू एंड जीरो वेस्ट ऑफ टाइम, बिकॉज इट इज रेड हैट पैकेज मैनेजर. तो तुमको उसको क्या करना है, रेड हैट पैकेज मैनेजर से उसको अनटार करके यूज करना है. Now the question is, if you want to do it one by one, your option is here. wget मैंने डाउनलोड किया, smoke testify. wget मैंने डाउनलोड किया, IP tables, IPv6, SC Linux, THP, okay, compression, NSCD, NTP. ये सब क्या होता है, इसका सेशन अलग है, तो अभी रिलैक्स करो. ये सब तुमने डाउनलोड किया है. एक ऑप्शन ये है. दूसरा ऑप्शन ये है कि आई विल गिव यू this particular Python ka script. You can run the Python ka script and relax.
दिस इज अवर .py. तो मैंने इसको क्या किया, कॉपी कर लिया. आई एम कमिंग बैक हियर. ओके, एंड अब इसमें क्योंकि नैनो इंस्टॉल्ड नहीं है, तुम करोगे ना sudo apt install nano, so I have to give a name to this. So kernel tuning. देखो जो लिनक्स वाले हैं उनको आदत होती है वो कैपिटल कभी नहीं डालते, लेकिन अभी मैं मैनेजमेंट में भी सीख गया हूँ कैपिटल डालना. कर्नल ट्यूनिंग. और वो लोग कभी स्पेस भी नहीं देते, उनकी आदत रहती है. ओके, .py, whether you give it or you don't, it doesn't make any difference. So I'm going to press I so that I can insert. You are not able to see that, so let's make it visible. Okay, and now I want to copy this. Copy, paste, escape, write and quit. अब मैं पाइथन की जो फाइल है उसको रन करूंगा, isn't it? So because all the components in this require sudo privileges, so I will need to mention sudo. Now there are certain places where it will say error or something like that. So you just have to remember, इसमें prerequisites किया हुआ है, kernel tuning किया हुआ है, लेकिन जब तुम करने बैठोगे तो करना कितना आसान है वो देख लो. तुमने स्क्रिप्ट फायर किया, रिलैक्स, चाय कॉफी जो मंगाया तुमने पी लो, एंजॉय करो. It is doing your job. So the question is, will you will get benefit of this only when you get the job, isn't it? Or you're doing freelancing. लेकिन इसका जो कंपोनेंट है इसको याद करने से इंटरव्यू पार कर सकते हो. तो तुम्हारा जो काम है वो क्या है, याद करना कंपोनेंट्स को. किसके, prerequisites. See, there are certain places where you can say prerequisites. However, if you say kernel tuning, पगार बढ़ गई, पगार बढ़ाने के काम. One or two components because it's already done. और ये क्या है ना, तुम्हारा स्मोक टेस्ट भी ऑटोमेटिक रन करेगा. अब एक क्वेश्चन है, am I doing this on all the machines or one machine? What do you say? One machine, है ना. इसका मतलब ये होता है दोस्त, अब मैंने ना तुमको एक बात बताया है कि when I am taking this machine, all these machine 1 2 3 just to save time, इसमें पहले से प्रीरेक्विजिट्स किया हुआ है. लेकिन जब तुम करोगे तो तुम क्या करने वाले हो, I'm closing this file because it's no more required. Let's come back here. तुम क्या करोगे, तुम ये वाला इमेज लोगे ऊपर का, करेक्ट. इसको सब्सक्राइब करोगे. स्टेप 2, आफ्टर यू हैव सब्सक्राइब्ड यू विल डू द प्रीरेक्विजिट्स. तो उसके लिए वो पाइथन की फाइल तुम क्या करोगे, फायर कर दोगे. तो तुम्हारा प्रीरेक्विजिट हुआ कि नहीं, हो गया. स्मोक टेस्ट हुआ कि नहीं, हो गया. अब होने के बाद उसको तुम सेव करोगे. किसको, इमेज को. तो वो इमेज कैसे सेव होगा, ऐसा, ये देखो ये वाला, which you can use again and again. और अफवान जो है ना पीछे जा रहा है लाइफ में, पीछे नहीं जाना है, आगे जाना है. यस, आगे. अभी सारे टॉपिक्स हमारे आगे जाने वाले हैं. सो पीछे हमने वो तुम्हारा बेसिक क्लियर करने के लिए जो चीजें बताई थी पीएस पीडीएसएच, आगे जाके कुछ और होने वाला है. डोंट वरी, अभी हम शेल स्क्रिप्टिंग से और पाइथन से अपना काम करेंगे. और स्क्रिप्ट्स तुमको बनानी नहीं है, बनी बनाई है, यूज करनी है. और अगर हम बोलेंगे यूज करने भी नहीं आ रहा है, AMI इज एब्सोल्युटली फ्री, डोंट वरी, रिलैक्स. तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कर्नल ट्यूनिंग प्रीरेक्विजिट्स डन. तो ऐसा तुम्हारे पास एक इमेज बन जाएगा. फिर तुमने मेरा जो वेब सर्वर है उसको भी क्या किया, अपग्रेड किया, सेव करके रख लिया. अपग्रेड मत करो, हाँ अपग्रेड करो लेकिन रिलीज अपग्रेड मत करना. और तुमने उसको सेव करके रख लिया. तो तुम्हारे पास कितने इमेज हो गए, एक हो गया वेब सर्वर का और एक हो गया कर्नल ट्यूनिंग का विद कर्नल ट्यूनिंग. और ऑफ कोर्स इफ यू वांट यू कैन कीप योर चावी एंड एवरीथिंग इन वर्कस्पेस.
तो कितने टोटल इमेजेस हो गए? 3 images now in your workspace. So far sandbox is concerned, forget about this. It's of no use to you. Let me see if I can make it public. I am not able to make it public, but now AWS थोड़ा बहुत. क्या बात है, क्या नसीब पाया है तुमने. चलो अभी देखना नहीं है, लेकिन पहले ही बोल देता हूँ, आई विल शेयर दिस विथ यू, डोंट वरी. अभी तुम्हारे को सैंडबॉक्स दे दिया मैंने. सैंडबॉक्स क्या है, तुमको उसके जो फीचर्स है वो देखना है एक ही सिंगल मशीन के ऊपर. यू कैन सी इट. ओके, फॉर दैट यू विल रिक्वायर द AMI ID which I am sharing with you, because पहले कभी अलाउ नहीं किया था इसने, अब AWS बहुत सुधर गया यार. एंजॉय करो. This is for the sandbox. Just save it. Don't use it now, okay? Because you will not understand anything later on. Miss करोगे तो. Now the question is कि मेरा prerequisites हो गया है और smoke test भी हो गया है, isn't it? लेकिन एक काम की बात, यहाँ दिख रहा है तुमको database? दिख रहा है ना? Very nice. Okay. Now it is asking me कि यार तेरे को एक database की जरूरत पड़ेगी. You tell me. Should I take a separate machine for the database in EC2, or should I deploy it here, or is there any other option? सेपरेट मशीन. तो समझो मैं अभी इधर आया, देखो आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. चलो एक काम करते, तुमको इस पे लेके आता हूं मैं. See, now what I'll do is I will scroll right on top. Okay, I'll show you. अब यहाँ पे ना स्मोक टेस्ट थोड़ी देर पहले तुमने देखा है, स्मोक टेस्ट हो चुका है. ये क्या बोल रहा है कि डेटाबेस सपोर्टेड MySQL सर्वर इज इंस्टॉल्ड. क्या बोल रहा है वो? Supported MySQL server is installed. MySQL community server 5.7 is installed. Then I'm asking you a question कि मुझको डेटाबेस इंस्टॉल, अरे जब इंस्टॉल्ड है तो क्यों पूछ रहा है भाई तू ये क्वेश्चन? सवाल ही नहीं उठता है. When it is already installed, why am I asking you why should I install? उसका एक आंसर है. ये जो डेटाबेस है ना, ये तुमको दिखाने के लिए, क्योंकि कुछ लोग है जो यहाँ फेल देखेंगे ना, फेल, तो परेशान हो जाते हैं वो लोग, तो उनको खुश करने के लिए डाला ये. यस, चीट शीट याद है ना? This is an open source database. We will not use this in the enterprise. So मैं क्या करूंगा अभी तुम्हारे सामने, I will clear this and show you. पहले पिछली बार मैंने LS किया था कि नहीं किया था ना, अब मैं वापस कर रहा हूं. तो तुमने एक नोटिस किया होगा, ए यार ये पाइथन वाली फाइल जो थी ना, उसने एक्चुअली वो शेल स्क्रिप्ट की जो फाइल है उसको यूज किया है. हाँ, तो जिसको पाइथन आता है उसको रीड कर लेना. तुम्हारे मूडल में वो अवेलेबल है. Okay, today it's going to be unlocked, so you will get to see that. Don't worry. So ultimately it has used both, है ना? Sorry, this is my file. I created this file. In this file we have downloaded all of them, but now I don't need them. I don't need them because इसने ना, there is a reason why I'm saying that. Okay, so I will to rm-rf. Okay, sudo वाले भी components है क्या इसमें? Oh my god. ठीक है, कचरा साफ. Now let's come back to the script and you tell me. अब जो मैं कर रहा हूं, say for an example, I am going to mysql.com, download okay, I have to scroll a little bit. Sorry, here it is. I am downloading this one.
RPM from mysql.com. You tell me what is the difference in this. ls करके दिखाऊं. And what is the difference in this. थोड़ा सा और जाना पड़ेगा ना ऊपर. मैंने एक ओपन सोर्स इंस्टॉल किया था, वो तुमको दिखाया था, वो पास हो गया है ना. अब मैंने, जबकि वो इंस्टॉल था, फिर भी मैंने क्या किया, एक नया वाला डाउनलोड किया. मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हाई व्हाट इज द डिफरेंस. इधर गए तुम लोग. हेलो. सी, यहाँ पे है ना, तेजस ने करेक्ट आंसर दिया है, फिर ने करेक्ट आंसर दिया है. ओके, उसका सिंपल सा फंडा है दोस्त, कि जो वो है ना, रिपोजिटरी से जो चीज डाउनलोड होती है वो ओपन सोर्स होती है. Anything that I download, sudo yum install, what is it? That is downloading from a repo. बात समझ में आई. रेपो से जो चीज डाउनलोड हो रही है उसको क्या बोलते हैं, ओपन सोर्स. आई एम डाउनलोडिंग फ्रॉम द एड्रेस ऑफ एंटरप्राइज. दिख रहा है तुमको, wget https mysql.com. When I am downloading this one, I am downloading the enterprise. Now you tell me, if I want to use the production, what should I do? Very nice, Nikhil. RDS जो हमने आज नहीं किया, तो मैंने VPC में क्या नहीं लिया, NAT नहीं लिया है ना. Then I did not explain you the prerequisites. I just told you this is how it is done, this is required, so save time. Then I did not take the database, the proper database. I just took enterprise database. So ये हमारा जो आज का जो सेशन है ना, ये enterprise grade है, production grade है ही नहीं. Isn't it? That's how it is. So because we are going step by step. Okay, ये वाला point समझ में आ गया. Amazing. अब क्या है, बस कॉपी पेस्ट करते जाना है ताकि टाइम बचे. आओ, सही, परफेक्ट. स्टार्ट कर दिया जाए फिर. स्टेटस भी देख लिया जाए. Now the question is, I will need a temporary password. Okay, so let me get the password first. This is the password I'm getting for the local host. इससे local host को देखते के साथ ही समझ में आ गया ना कि दोस्त ये तो प्रोडक्शन हो नहीं सकता. Yes, that's how it is. तो वो भी हम देखेंगे, RDS को कनेक्ट करके भी दिखाऊंगा. Don't worry, relax. But we want you to know the difference in between open source, enterprise and production. कुछ लोग क्या होता है ना, वो ऐसी बेवकूफियां करते. They don't know what it takes to make something production grade, isn't it? What it makes, what it takes actually. क्योंकि उनकी शादी में खर्चा करने का मतलब उनको मालूम नहीं होता उसका मीनिंग क्या है. That's how it is. Okay, so now I'm going to give the password quickly. अब ये जो पासवर्ड मांग रहा है ना, वो ये है. मैं इसको यहां से कॉपी करूंगा. ओके, और यहीं पेस्ट कर दूंगा. It's asking me for a new password. So I'm focusing on the password now. It's asking me, बदल दूं? Yes. Anonymous user को निकाल दूं? Yes. Disallow root login? हाँ, disallow करेगा तो हम ही login नहीं कर पाएंगे, तो no. Remove test database? Yes. Reload privileges? Yes. All done.
अब मेरा जो डेटाबेस है वो क्लाउडेरा मैनेजर के मशीन के ऊपर है, ये दिख रहा है तुमको 216 216. So I'm going to instances. In instances, this is Cloudera Manager 216. तो इसमें मैं लिख देता हूं डेटाबेस. अब एक क्वेश्चन है, why do you need a database in first place? Why do you need a database? तो उसका आंसर फॉर मैट्रिक्स कलेक्शन. क्या आंसर है? फॉर मैट्रिक्स कलेक्शन. बस इतना बोलना है तुमको. And you have given the answer. So let's log in quickly and create database. अब मेरा स्टेप फटाफट खत्म करता हूं उसको मैं. देखो अभी फिर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे. Okay, now I am on the prompt where it is saying Oracle is a registered trademark corporation and blah blah blah, because ये open source वाला फोकट वाला माल नहीं है, ऐसा वो बताना चाह रहा है हमको. Okay, now we are going to create a database. So this time if you notice यहाँ पे ना एक्चुअल देखा जाए तो एक्चुअल मुझे सिर्फ ये एक डेटाबेस क्रिएट करना चाहिए. तो मैं इसको पहले कॉपी कर लेता हूँ. शो डेटाबेसेस. इसमें देखो SCM नहीं है ना? नहीं है. यस. सो आई एम जस्ट पेस्टिंग इट नाउ. अब आ गया SCM. आई क्रिएटेड अ डेटाबेस. नोटिस किया तुमने? सो व्हाइल यू आर प्रैक्टिसिंग, डोंट क्रिएट दिस SCM व्हाइल यू आर प्रैक्टिसिंग. तो कुछ लोग तो डेफिनेटली भूल जाएंगे. वॉलंटियर्स का ये फायदा होता है. वॉलंटियर्स वो एरर को देख लेते जो उन लोगों ने खुद कभी क्रिएट नहीं किया होता है. सो द लर्निंग इज बिगर फॉर देम. ओके. अब ये जो दूसरे जो डेटाबेसेस है ना, ये मैं अभी नहीं करूंगा because of the concept, isn't it? I am just doing it for SCM and then I am doing exit. देखा तुमने? सब कुछ इधर ही है. कि मैंने एग्जिट किया. एक्चुअली देखा जाए तो हमारी दुनिया में एग्जिट टाइप करके कॉपी पेस्ट करना शर्म से डूब मरने वाली बात है. बट एक वो मूड में आ जाता तो कॉपी पेस्ट सब चीज कॉपी पेस्ट कर डालते हैं. ओके. नाउ द क्वेश्चन इज, इतना तो समझ में आ गया कि हमारे पास एक डेटाबेस है उसी मशीन पे जहां पे क्लाउडेरा मैनेजर क्या है. हमने प्लान किया है. प्लान अभी कुछ है नहीं, प्लान किया है. तो उसका प्रूफ चाहिए ना तुमको. दैट्स अ गुड क्वेश्चन. सो लेट्स हैव अ लुक एट द प्रूफ. sudo service cloudera -scm. याद है SCM? अभी डेटाबेस बनाया ना. सर्वर स्टेटस could not be found. ठीक है? That's okay. Now, because your web server is running over here on Ubuntu, in your case also you will be running it here on Ubuntu. This is where your web server is running. So I'm minimizing this, going back to the script, okay, and I'm creating a repo. देखो हमेशा याद रखना, आज तक क्या हो रहा था, किसी दूसरे डेवलपर ने, डेवऑप्स ने रेपो क्रिएट किया था. तुम क्या कर रहे थे? उसको यूज कर रहे थे. आज टाइम आया है तुम अपनी रेपो खुद बनाने वाले हो. तो कोई ऐसा बड़ा काम नहीं हाथी घोड़े वाले, है ना. इट्स जस्ट अ फाइल. अल्टीमेटली इट इज जस्ट अ फाइल. तो फाइल का एक्सटेंशन क्या है? डॉट रेपो, isn't it? And you can see the name we have given is Cloudera Manager. If you want, you can just write CM, but because I am training, I am giving this name. That is your choice. Important क्या है? Important है कि वो it is supposed to be in this particular folder. So what I'll do is I'll copy this. तो मेरी फाइल खुल गई. अब तुमको ये बताना है कि जो बेस URL है, ये बेस URL का जो IP एड्रेस है जहां पे ये CM5 रखा हुआ है, वो क्या होना चाहिए. तो वो बोलने के लिए तुमको क्या लगेगा?
ये वाला machine, host name. So if I type host name, I'm not getting the right information. -F. So now I'm copying this address. Okay, coming back here, fully qualified domain name डाल दिया मैंने, क्योंकि मेरा सर्वर है वो इसी एड्रेस पे है. Yes or no? Of course. तो ये बात कितनी सच है ये अभी पता चल जाएगी. देखो मैं कॉपी कर रहा हूँ पूरा एड्रेस तुम्हारे सामने. आई एम कॉपिंग दिस एंड आई एम कमिंग बैक हियर. ओके, लेट्स गो बैक हियर. ये तो क्लाउडेरा का था, सो लेट्स गो बैक हियर. आई एम पेस्टिंग, पेस्ट कर दिया. सो आई जस्ट हैव टू हिट एंटर, राइट? दिख रहा है तुमको? रेपो डेटा, क्लाउडेरा मैनेजर, एजेंट, डीमन एंड द सर्वर, सब आरपीएम दिख रही है. दैट इज on a private address. On top you can see private address. Perfect. अब ये वाली बात समझ में आ गई. सो हम क्या करेंगे, इसे एक कॉपी करेंगे. अब तुमको अगर ऐसा लग रहा है कि हम कोई बहुत बड़े ज्ञानी हैं, हमने ये खुद बनाया है, ना 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 ना. एडमिनिस्ट्रेटर जो होते हैं ना, उनको थोड़ा सा अलर्ट और कंट्रोल वाला होना पड़ता है, बस ये उनका जॉब रोल है. बाकी मेहनत करने का जो काम है वो बेचारे डेवलपर्स का है. यस, उन लोगों ने अपनी तकदीर में लिखा के रखा है, हार्ड वर्क. हाँ, हमारी तकदीर में क्या लिखा है हमने? थोड़ा थोड़ा सब कुछ. 30% हार्ड वर्क, 30% जस्ट वर्क एंड 30% क्या है वो? स्मार्ट वर्क. वेरी नाइस. और बचा कितना? 10% डोंट वर्क. हाँ, वो भी पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ है. और उनकी जिंदगी 100% हार्ड वर्क. That's how it works. So I'm copying this, coming back over here to that CentOS वाला machine. मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया. Okay. If you are thinking कि ये जो parameters है, isn't it? ये रेपो के लिए इसी तरीके का इसका क्या है? जिसने भी कोडिंग किया उसको इस तरह से कोडिंग किया कि when you mention in this way, name is equal to blah 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 and base URL is equal to blah 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 and the key, access key to that base URL is blah 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 address. It will take it. Okay, so we have done that. Now the question is, does the system know that you have made a change in the what? In the hard drive. System does not know. तो पुराना वाला क्लीन करना है और नया कैशे ऐड करना है, isn't it? So I am copying this and pasting it. तो तुमको जो नोटिस करने वाली बात है वो ये है. See, when it is checking for the new repo, it is telling you I have found the new repo. यहाँ पे, isn't it? See, it has actually found the new repo. So what we'll do is, because it is coming here on this machine, so we'll type sudo apt install if top. Perfect. Okay, अब sudo if top, we will come back again on this particular machine. Why? So that you can see ना कि भैया क्लाउडेरा मैनेजर मशीन जो है ना, उसका जो आईपी एड्रेस है, is this correct? So have a look. Correct. And this cloudera machine is coming to this particular machine to take the repo, isn't it? Ubuntu वाला. तो ये 247 जो है वो Ubuntu है और 216 क्या है? वो CentOS वाला मशीन है जो यहाँ पे तुमको नहीं दिख रहा है, isn't it? But it has to cross some switch जो तुमको दिख रहा है. And there is one extra machine that you are able to see. वो कौन सा है? 1166. Even I don't know which machine is this. Anybody knows which machine is this? हाँ, दिख रहा है तुमको यहाँ ऊपर प्राइवेट आईपी एड्रेस? ये वाला प्राइवेट आईपी एड्रेस मेरा डेस्कटॉप का, वर्क स्पेस का, isn't it? Exactly. So हम इसको क्या करेंगे, ऐसे खुला छोड़ देते अभी और उसके बाद फायर करेंगे. So let's come back to CentOS. Okay, and
See, JDK is already installed. So I will skip that component just to see how true is that. अब क्या है ना, मैं इसको जो बोलूंगा कि yum install cloudera manager server and manager daemons, तो पड़ेगा yum को लाना पड़ेगा ना रेपो, कहां से? तो तुम बताओ कहां से लाएगा वो? इंटरनेट से लाएगा कि लोकल मशीन से लाएगा? लोकल मशीन, yes. So let's hit enter and see. इसने शुरू कर दिया अपना काम. दिख रहा है तुमको? यहाँ ऊपर दिख रहा है ये आईपी एड्रेस, और ये दिख रहा है तुमको साइज एमबीज में, isn't it? काम चालू हो गया दोस्त. 750 MB. अब क्योंकि वो लोकल मशीन से कर रहा है डाउनलोड, तो जरा फटाफट करेगा ही ना. और इंटरनेट यूज हो रहा है क्या? नहीं. सो इफ आई हैड अ नेट गेटवे, तो वो नेट गेटवे पे जाएगा कि नहीं जाएगा? यू हैव टू टेल मी. सोच के बोलो. It will not go on the NAT gateway. That means you are saving money on that. Actually, organization is saving money on that, isn't it? Because they're not going on any NAT gateway. Okay, ये वाला कंपोनेंट समझ में आया. अब देखो इसमें ना कुछ आईपी एड्रेस ऐसे अद्भुत प्रकार के दिखेंगे तुमको, लेकिन ये तो स्विच है, ये दोनों स्विचेस है. सो रिलैक्स. नाउ द नेक्स्ट पार्ट, लेट्स फर्स्ट हैव अ लुक कि इसने अपना काम कंप्लीट किया कि नहीं किया. सेंटोस पे जाएंगे तो देखने के लिए. तो ये बोल रहा है कि कंप्लीट किया. क्या कंप्लीट किया? मैनेजर सर्वर और डेमन इंस्टॉल हो गया है. दैट्स व्हाट इट इज टेलिंग. तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट. बट बिफोर वी स्टार्ट, यहाँ पे देखो स्टार्ट इधर है ना. तो मैं ना जानबूझ के ऐसा करने वाला हूँ. कभी कभी ऐसा गालियां सुनने से बहुत आदमी सीखता है, इंसान जो है ना बनता है. तो ये जावा की जो गालियां हैं, इसकी आदत सी हो गई है. ओके, सब मैंने इसको बोला कि स्टार्ट कर. इसने सर्वर स्टार्ट किया. sudo service cloudera -scm -server status. तो बोल रहा है देखो ये एक्टिव है. बराबर है कि नहीं? अब एक काम की बात, while you're doing this, okay, you possibly will not be able to access that. You know why? Because let me stop this. अब मैंने सर्वर को क्या किया? स्टॉप कर दिया. Why? Because there is a script which I want to run. I'm supposed to run first to invoke the database. तुमको याद है एक SCM का डेटाबेस तैयार किया था हमने? तो उसके लिए ना ये SCM प्रिपेयर डेटाबेस की एक स्क्रिप्ट है. भाई हमने नहीं बनाया है, क्लाउडेरा ने बनाया है. तुमको खाली इसको फायर करना है. दैट्स इट. सी, लाइफ इज सो इजी. भाई रॉयल्स रॉयस किसी ने बनाया है, तुमको बैठ के सिर्फ चलाना है और एंजॉय करना है. दैट्स इट. तो उसमें क्या है ना, ये डेटाबेस जो ये जो स्क्रिप्ट है, जब तुम फायर करोगे तो इट विल रिक्वायर MySQL और व्हाटएवर ओरेकल डेटाबेस और व्हिचएवर डेटाबेस यू वांट टू यूज, यू कैन यूज. ओके, तो ये जो H का मतलब होता है होस्ट. तो ये जो होस्ट का जो एड्रेस है, ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? सो लेट्स हैव अ लुक. होस्ट नेम इनकरेक्ट है, isn't it? So we will correct it. अब करेक्ट हो गया. तो वो क्या, मैं क्या बोल रहा हूँ उसको कि MySQL पे जाएगा तू, वहां पे तेरे को एक डेटाबेस मिलेगा, उसका नाम है SCM. ठीक है ना? और उसके अंदर एक टेबल है SCM, उसका पासवर्ड है पासवर्ड. सो वो क्या करेगा? डेटाबेस को एक्सेस करेगा विद द पासवर्ड. सो लेट मी फायर दिस.
तो यहाँ पे बोल रहा है देखो all done, your SCM database is configured correctly. Okay, now if I want to access this, it will be easy for me to access. Actually पहले easy तो बहुत दूर की बात है, access. तो अभी भी जो लोग ये सोच रहे हैं कि which database are we talking about, तो तुमको याद है हमने एक MySQL का डेटाबेस इसी मशीन के ऊपर बनाया था. -u, what was the user? Root, and -p, and what was the password? Show databases. तो तुम्हारा होमवर्क ये है कि जब तुम इसमें लॉगिन करोगे तो SCM है ना, इसके अंदर जाके देखना है ना, यूज SCM and see show tables and you will see the matrix collection का जो डेटा है वो इसके अंदर कैसे आया है. Okay, so now you know that. Now the question is, अब अगर मैंने फायर किया कि स्टेटस कैसा है, तो वो पहले जैसे उसने बताया था एक्टिव, वैसे अभी भी बताएगा कि ये एक्टिव है. ओके, सो मैं उसको स्किप मारूंगा एंड लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट एंड दैट इज पाइप का मतलब ये होता है कि मुझको ग्रैब करना है या आगे मुझको एक और कमांड फायर करना है. तो व्हाट एम आई ग्रैपिंग? 7180. मतलब ये है दोस्त, इट इज एक्चुअली टेलिंग यू कि यू कैन कम फ्रॉम एनी आईपी एड्रेस and I'm listening at 7180 port number 7180 पे I'm listening and I am Java process and my ID is this ID, process ID. तो अगर समझो मैंने इसको हटा दिया और इसकी जगह पे मैंने डाल दिया 22, मतलब SSH का जो सर्वर है, इज इट लिसनिंग? यस, इट इज लिसनिंग. तो TCP के ऊपर भी लिसन कर रहा है और TCP 6 के ऊपर भी वो क्या कर रहा है? लिसन कर रहा है. So which means the moment I get this message, अभी क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट हो गया, okay, while explaining थोड़ा सा लेट हो गया. पहले अगर मैं आके तुम स्पीड में आके यहाँ पे जब टाइप करोगे ना ये वाला 7180, तो it will not show you anything. Why? Because it wasn't listening on that port number. So I was supposed to do it little faster, but because I was explaining, I forgot that. Okay, so now let's come back here. As promised, वो क्या बोल रहा है? I am listening on this particular port number because you are running me on this particular machine. So I will need this host name. So I copy this host name. I come back, paste 7180. किधर गया? 7180. So here Cloudera manager is up and running. अब हमारी मजबूरी है टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करना है, whether you like it or you don't like it. So let's accept it. Go ahead. किसी ने पूछा कि कितने वर्जन होते थे क्लाउडेरा के, तो तुम बोलोगे बेसिक, फ्लेक्सी एंड क्लाउडेरा एंटरप्राइज. तो अभी हम जो यूज कर रहे हैं वो क्या है? क्लाउडेरा एंटरप्राइज. और इसका जो एक्सप्लेनेशन ये कौन देगा? बेसिक, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एंटरप्राइज, वो मैं आगे दूंगा, इसी में दूंगा, डोंट वरी. Okay, so what you get in enterprise? You get everything except for the support and trust key. Let's continue. तो अगर समझो तुम्हारे पास पैसा भर दिया है तुमने, you're not in a trial version of enterprise, then you will have to upload the chavi. It will be similar to this key .pem. Okay, CERT भी हो सकता है उसका, अभी तो गालियां देगा. So let's continue. ये दिख रहा है तुमको? This is the ecosystem of CDH. अच्छा, is this the ecosystem of CDP? No. Is this the ecosystem of HDP? No. Is this the ecosystem of EMR? No. Is this the ecosystem of sorry, क्या था उसका नाम? MapR. So answer is no.
Is this the ecosystem of open source? The answer is no. Is this the ecosystem of Cloudera, CDH? The answer is yes. ठीक है ना? इतना याद रखना है. Okay, now let's continue. How many do I want in here? तो उससे पहले, before I give that answer, let's come back here and type ARP. तुमने देखा ARP किया मैंने अभी थोड़ी देर पहले. तो ये बता रहा है कि देख भाई, आई एम डीलिंग विद two switches here. I am dealing with one of this machine, okay, that I am connecting. अभी just now हमने repo वगैरह किया था इसके लिए. And there is one more machine 1166, that is your workspace. So हमने actually जो planning के हिसाब से machines लिया वो यहाँ पर है. So I will go to IP address. तो तुम्हारे पास ये ऑप्शन नहीं होगा, याद रखना, ऑर्गेनाइजेशन में इस तरीके से कॉपी करने का. तुम्हारे पास होगा एक ईमेल, उसमें बोला जाएगा कि दिस इज द रेंज ऑफ आईपी एड्रेस वेयर आई एम गिविंग यू 50 मशीन्स, 30 मशीन्स, 40 मशीन्स एंड मे बी 10 मशीन्स. यू विल हैव टू क्रिएट योर क्लस्टर. अब मैंने इसको कॉपी कर लिया. 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने हैं? 7 है ना? 3 4 6 7. परफेक्ट. सो आई एम कॉपिंग ऑल, जानबूझ के. 1 2 3 4 5 6 7. परफेक्ट. तो उसमें से एक उसने ऑटोमेटिक निकाल दिया, जो कि मेरा वर्क स्पेस है. देयर इज वन मोर मशीन इट इज गोइंग टू थ्रो आउट. इट इज सपोज टू, दैट इज दिस वन, है ना? क्या आईपी है इसका? 247. क्योंकि वो लिनक्स का मशीन है तो उसने एसएसएच का आंसर दिया 247 ने, तो मैं इसको अनटिक खुद ही कर देता हूं. Isn't it? Because that is the web server which we can't put in this. तो अब मेरे पास टोटल मशीन कितने बचे? 1 2 3 4 and 5. कंटिन्यू. तो अब 5 मशीन से मैंने कंटिन्यू किया. यूज पैकेजेस एंड यूज पार्सल्स. पार्सल्स एंड पैकेजेस का जो फर्क है, डिफरेंस है. ओके, से फॉर एन एग्जांपल आई कम बैक हियर. कहां गया? एंड आई टाइप sudo apt install hive. तो अब इसने मेरे को क्या बोला? Oh, yum yum. Nothing to do. No package. दिख रहा है तुमको? No package. अगर समझो मैंने एक रेपोजिटरी बनाया जिसमें ये सारे के सारे पैकेजेस है, क्योंकि पैकेजेस का रेपो अलग है, वो मैंने डाउनलोड करके रख लिया और मैंने एक एक कमांड फायर के एक एक चीज इस तरीके से डाउनलोड किया. तो उसमें प्रॉब्लम क्या आएगा पता है? उसकी जो अपडेट्स है वो भी तुमको मैन्युअली करना पड़ेगा, which is not recommended. तो जो recommended है उस पर फोकस करो. Isn't it? Okay. Now यहाँ पे दिखा है देखो, CDH version is 4.7 point blah blah blah. 4.7 point some version which we don't want. तो तुमको याद है ना ये वाला archive.cloudera.com? I am copying once again to show you. Let's check it out. तो मैं क्या करूंगा अभी, यहाँ पे जो पार्सल है CDH का, सी सीधा फॉरबिडन. इतना गुस्सा, यहां से घुस सकते हैं अंदर, है ना? सी घुस गए. देखा तुमने? हाँ, बहुत खूब. लेट्स गो टू रेड हैट. लेकिन लिस्ट तो देख लिया ना? चलो इतना भी काफी है. ओके, वो किसका रेपो था? क्लाउडेरा. तो अब हमारे रेपो का एड्रेस यहाँ डालना पड़ेगा, तो मैं ये सब माइनस करके उड़ा देता हूँ. ओके, एंड आई एम गोइंग टू थ्रो आवर ओन रेपो एड्रेस. वेयर विल आई गेट इट फ्रॉम हियर. हाउएवर, हमारा जो रेपो है वो हमको सीएम का नहीं चाहिए, सीडीएच का चाहिए. CDH, what was that? 5.16. That's what it is now. So let's copy this. अब ये सही है नहीं है
वो अभी पता चल जाएगा, डोंट वरी, चिल। तो यहां दिख रहा है तुमको 5.16। अच्छा एक काम करते हैं, लेट्स गो बैक। अब मैं यहाँ पे ना एस डालता हूँ, एस। सिर्फ एस डाला, बस कुछ नहीं किया, तो उसको नहीं मिला। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि उसके पास है ना वो जो सर्टिफिकेट का तुम्हारा जो वादा है एस डालने से, वो सर्वर पे अवेलेबल नहीं। नाउ बिकॉज देयर इज नो सर्टिफिकेट, इट सेज कि आई कुड नॉट, है ना, इट इज नॉट अवेलेबल, नो पार्सल्स फाउंड। तो प्राइवेट होने की वजह से आई डोंट नीड दैट सर्टिफिकेट, सो आई एम गोइंग टू रिमूव दिस, सेव। वी आर बैक इन बिजनेस, isn't it? 5.16. Okay, now this is for CDH, ये बात याद रहेगी, CDH। And this here, यहाँ पे नीचे custom repository for CM, cloudera manager server, दोनों भी अलग है, दोनों भी अलग है। अब यहाँ पे नीचे देखो HTTPS का एक एड्रेस है ना, so हम इसे कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट करेंगे, which is not our repository, of course। देखा तुमने, गालियां दे रहा है, देने दो, कोई बात नहीं, आदत हो गई अभी, वो शादी के बाद तुमको पता चल जाएगा। ओके, नाउ लेट्स गिव द एड्रेस। तो अब ये मेरे पास एक ऑप्शन है, यहां से भी एड्रेस कॉपी कर सकता हूँ ना मैं, CM5 वाला, CM5 स्पेलिंग का कुछ गड़बड़ है क्या? यहां से ये तो समझ में आ गया ना, वार W ओ 16 भूल गया, ठीक, .16। आई एम कॉपिंग इट फ्रॉम हियर एंड वी आर डन। अब एक छोटा सा ब्रेक लेने का टाइम आ गया है, छोटा सा। व्हाई? बिकॉज ये अपना काम करेगा जब तक हम ब्रेक लेंगे इंस्टॉलेशन का, isn't it? We don't have to do anything। अभी इसकी जो वो है क्या बोलते हैं सर्टिफिकेट, वो ये वाली है, ये वाली, देखा तुमको, क्या बोलते हैं उसको यार, सर्टिफिकेट नहीं, चाबी, चाबी, सॉरी। नाउ आई एम टेकिंग दैट की, ये भी एक ऑल टैब की भी एक आदत हो गई है, isn't it? So let's come back। कहाँ गया क्लाउडेरा का स्क्रीन? We are done। Okay, now the question is, because you're installing JDK, enterprise grade JDK, तो उसकी जो जेसी उसका जो कम्युनिकेशन है, जिसका JVM का जो कम्युनिकेशन है, क्लाइंट टू सर्वर कम्युनिकेशन, दैट कम्युनिकेशन इज नॉट सिक्योर्ड। इफ वी वांट टू सिक्योर इट, वी नीड the unlimited strength JCE policy files। What do we need? JCE policy files। तो उसके लिए ये टिक किया मैंने, ये ऑटोमेटिकली वो दो जार फाइल्स है ना, वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, लाइब्रेरी के फोल्डर में डाल देगा। कंटिन्यू। उससे क्या होगा? उससे होगा कुछ नहीं, उससे सिर्फ एक ही फायदा मिलेगा, एंड दैट इज my communication on top of JVM will be secured। Now the question is, तुमने देखा ये इधर लिखा है cloudera SCM, दिख रहा है ना? I'm coming back here to show you। मैंने जैसे cloudera मैनेजर इंस्टॉल किया तो एक डेटाबेस मैंने तुमको बताया, ओके। अब एक नई चीज बताता हूँ, उसने यहाँ पे देखो एक यूजर भी ऐड किया है, cloudera SCM। So it is asking you, do you want cloudera SCM alone as the user for the cluster, or do you want to add separate user for every service, separate user for every service? तो हमारा जवाब है we want separate user for every service।
That's the reason we are not going to tick this single user mode. तो अब तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन होगा ना कि यार ये अभी भी समझ में नहीं आया, सेपरेट यूजर फॉर एवरी सर्विस. यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, नहीं आता समझ में जल्दी से. तो उसका आंसर ये है कि एग्जाम्पल HDFS, एग्जाम्पल क्या दिया है, एच बेस. तो जो सर्विस है HDFS वाली, उसके लिए वो एक HDFS का यूजर बनाएगा. एच बेस के लिए क्या बनाएगा, एक यूजर. हाइव के लिए एक यूजर. स्पार्क के लिए एक यूजर. ह्यू के लिए एक यूजर. सो एवरी सर्विस विल हैव वन यूजर. If you want only one user for all services, this is your chance. तो अगर मैंने ये टिक किया तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डेवलपर क्लस्टर. मैंने अनटिक किया, ये बन गया एंटरप्राइज क्लस्टर. लेकिन जब ये सिक्योर करूंगा तो ये बनेगा प्रोडक्शन क्लस्टर. और ऑफ कोर्स पीछे की सारी बातें भूलना मत, है ना. हमने नेट नहीं लिया है, बहुत सारी चीजें हैं जो we are not taking right now, which we will take in a jiffy. Don't worry, in the next coming up sessions, because you will be able to connect all your dots. Now it is asking you कि अगर तुम्हारा नेटवर्क का स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है तो you can say 100 machines at a time. अरे मेरे पास तो 10 के वांदे फिलहाल, isn't it? So it is of no question. So let's continue. Now what's happening in the background? Oh yes, अपने से एक मिस्टेक हो ही जाती है ना, यही प्रॉब्लम है. sudo if top. तो ये if top में तुमको क्या देखने मिल रहा है, यहाँ पे देखो, ये है ना, कि कोई तो आ रहा है और मुझसे बहुत सारी चीजें लेके जा रहा है ना. देख रहे हो तुम. नाउ लेट्स कम बैक हियर. तुमको याद है मैंने आर्प किया था, ARP पिछली बार किया था, तो कितने मशीन थे और अब की बार कितने मशीन है. सी, सो व्हाट वी आर डूइंग इज, एक्चुअली देखा जाए तो नथिंग. हु इज डूइंग एवरीथिंग, द टूल इज डूइंग इट. तो तुम समझो TCS में इंटरव्यू दे रहे हो और रिलायंस में इंटरव्यू दे रहे हो, तो रिलायंस वाले ना तुमको टूल्स पे बहुत फोकस करते हैं, TCS वाले प्रोसेस पे फोकस करते हैं. This is how it is. There are very few companies those who focus too much on how less charge you will take. पैसा कितना कम लोगे तुम, पैसा उनके लिए क्राइटेरिया नहीं होता है. फॉर द राइट कैंडिडेट दे कैन एक्सटेंड. उनको पसंद आ गया बंदा, थोड़ा ज्यादा देने को तैयार है. कंडीशन पसंद आना चाहिए. दैट्स हाउ इट इज. इंटरव्यू में पहला प्यार होना चाहिए उनको तुमसे. उसके लिए वो सुबह सुबह 5 बजे उठ के लाइन में खड़े रहेंगे बस की, कि ये अभी आने वाला है मेरा पहला प्यार. ओके, सो अब क्या करेंगे. सी, there is one machine which definitely has completed first, है ना. I think this is that machine 216, this one, cloudera manager वाला. You know why? क्योंकि उसमें JD के पहले से इंस्टॉल्ड था. Yeah, that's exactly how it is. So let's continue. अब क्या हो रहा है, अब हो रहा ये है कि वो है ना डाउनलोड कर रहा है. तो तुम बताओ कहां से डाउनलोड कर रहा है. ओ माय गॉड, देख रहे हो तुम लोग, 4 GB. जस्ट इमेजिन अगर ये मेरे नेट गेटवे से 4 GB आया होता तो मेरा तो टकला हो गया होता अभी तक. सी, 5 GB. यहाँ नीचे देखो, नीचे टोटल 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 टकला 5 GB का. See, so when you have a local repository, you save that, isn't it? You save that, all that. Say for an example, even if I use NAT in this case, unless and until I'm not doing update and upgrade and all that, it is not going to use the internet. But right now
आई एम जस्ट टेलिंग यू सो यू कैन रिमेंबर कि अगर मैंने archive.cloudera.com से डाउनलोड किया होता तो वहां से उसने क्या डाउनलोड किया होता, ये रेपो डाउनलोड किया होता नेट गेटवे से 5 GB का, एंड इट इज एक्सपेंसिव, स्टिल काउंटिंग। अच्छा उसने डाउनलोड किया, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट किया, उसके बाद क्या करेगा, अनपैक, है ना, उसके बाद एक्टिवेट। सो व्हाट विल डू इज विल टाइप हियर वेयर इज, ये सब पुरानी बातें है ना, हाडूप। अब जिनके ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं ना, उनके लिए आगे के आने वाले बहुत सारे टॉपिक्स, इवन Kubernetes and all these topics becomes very easy. Because ये सब यही फाउंडेशन है। See, I am typing where is Hadoop, it is not giving me the answer. You know why? Because उसने अभी अनपैक करके USR फोल्डर में डाला नहीं है। एक्टिवेट का मतलब है USR फोल्डर में डाल दिया। That's how it is. इसके लिए हमेशा याद रखना, कोई भी चीज के लिए अच्छे नाम यूज करो। वड़ा पाव को बर्गर बोलो, यस, ट्राई दैट, वेज बर्गर, पैसे ज्यादा। चाय है तो उसको बोले स्पेशल टी, ले, चाय पत्ती सेम, शक्कर सेम, स्पेशल बोला पैसे ज्यादा। एक्टिवेटेड आया समझ में, पैसे ज्यादा, बात तो वही है। स्टारबक्स से सीखो, स्टारबक्स का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है मालूम है, यू टर्न मारने के लिए उन लोगों ने जगह रखा है। कोई भी आता है अंदर, पहले बोर्ड पे देखता है 850 रुपए की कॉफी, तो यू टर्न मारता है वो। तो जैसे वो यू टर्न मारता है तो जो बैठा रहता है उसको मालूम रहता है ये यू टर्न मारेगा ये। दिस इज हाउ इट इज। लेकिन जिसके हाथ में लैपटॉप वगैरह रहता है उसको फोकट की जगह चाहिए, फ्री में बैठने का, पूरा दिन बैठेगा एक कॉफी लेके, उसके लिए सस्ता है वो, हाँ, फुल एयर कंडीशनड। तो तुमको प्रैक्टिस करना है, चले जाओ स्टारबक्स में, एक कॉफी लो, मस्त ठस जाओ। दैट्स हाउ इट इज। या अपनी देसी गिरी दिखाओ, 4-5 स्ट्रॉ निकालो जेब से, दोस्त लोग को बोलो एक कॉफी में शेयर करेंगे, शेयरिंग इज केयरिंग, एंजॉय। सी, जैसे एक्टिवेट किया उसने, वेयर इज हदूप का आंसर आ गया, इजंट इट? लेट्स कंटिन्यू। यू नो व्हाट इट इज डूइंग नाउ, इसको बोलते हैं स्मोक टेस्ट हमारी भाषा में, लेकिन इनकी भाषा में क्या था वो, इंस्पेक्शन। ओह माय गॉड, इंस्पेक्टिंग होस्ट फॉर करेक्टनेस, क्या बात है, मजा आ गया। सी नाउ you remember flexi edition, बेसिक एंड एंटरप्राइज। तो अगर मैंने बोला एंटरप्राइज यानी ऑल सर्विसेज, मेरे पास बहुत पैसा है, ऑल सर्विसेज। मैंने बोला कस्टम सर्विसेज यानी फ्लेक्सिबल, मतलब इसमें से मैं जो टिक 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 करूंगा और ले लूंगा, उसका पैसा भरूंगा। बेसिक मतलब ये लूंगा भाई, कोर या कोर विथ एच बेस, कोर विथ एम्पाला, कोर विथ सर्च, कोर विथ स्पार्क। नाउ द क्वेश्चन इज, जिस जमाने में ये, जिस जमाने मतलब आज भी चलता है ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन अभी इनको मूव करना है सीडीपी पे। लेकिन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दे आर सेइंग, 80% कंपनीज दे आर सेइंग हमारा सीडी आज अच्छा चल रहा है, हमको कोई जरूरत नहीं है। एनी विच वेज योर सीडीपी इज एक्सपेंसिव, getting the point? So they are looking for multiple other options which we are going to cover. Relax, we're going to cover that. Okay, so क्योंकि तुम्हारा रेज्यूमे पुराने रेज्यूमे के जैसा नहीं होना चाहिए ना, नया रेज्यूमे, उसमें नवी टेक्नोलॉजीज होनी चाहिए। ओके, सो आई एम गोइंग टू टेक कोर हदूप फॉर नाउ, ओके, बिकॉज मेरा जो मशीन है वो इतना कुछ खास तगड़ा नहीं है। नाउ द क्वेश्चन इज, कौन सा डीमन कहां पे रखूं? सी, व्यू बाय होस्ट, इट इज शोइंग यू, यार ये 4 मशीन उसने किसको दे दिया, डेटा नोड को दे दिया, HDFS के डेटा नोड, 4 मशीन नोड मैनेजर को दे दिया। तो गलत काम किया ना इसने, गलत गलत बहुत गलत है, ये एक्सपेक्टेड नहीं, इसीलिए एडमिनिस्ट्रेटर की जरूरत है। सो व्हाट विल डू इज, एज अ गुड एडमिन विल डू द करेक्ट अलाइनमेंट। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर इज क्लाउडेरा मैनेजर? तो तुम बोलोगे 216 के ऊपर है, isn't it?
एंड लकीली इसने देखो 216 पे डाल के रखा है. जान बची एक काम से. अब मैं उजी को यहाँ से हटा दूंगा 216 से. Okay, and I am putting it on some other machine. What is Uzi? For application. अब मेरा जो रिसोर्स मैनेजर है उसको भी मैं हटा दूंगा. And I'm going to throw that here somewhere. Okay, in some other machine. Job history server is also supposed to be with the resource manager. So मेरे कितने काम हो गए? Okay, now let's come to Hue. I'm going to throw this Hue with Uzi. Why? Because it is just a browser. What does that mean? You will understand gradually. अभी जैसे बहुत सारी चीजें अभी तुमको समझ में आई है ना वैसे. Okay, sorry, ये है load balancer. Okay, now I want to remove data node from Cloudera manager if it is there. And I want to remove data node from here. तो मेरे पास total data nodes कितने हो गए अभी? 3. तो नोड मैनेजर कितने होने चाहिए? वो भी 3 होने चाहिए. तो उसने ऑटो करेक्शन किया यहाँ पे. सी ऑटो करेक्शन. नोड मैनेजर 3. जू कीपर कितने होने चाहिए? ऑड नंबर्स, isn't it? तो वो भी 3 होने चाहिए. तो I have only 1 right now. I need 2 more. So I'm going to throw it 1 here and 1 here. So now I have 3 zookeeper as well. Okay. Now the question is, how does it look like? So have a look. Unbalanced, you know? Why? Because all these machines has to be thrown. Masters has to be thrown from there. So I'm going to balance that. Name node को यहाँ डाल देंगे. अब एक क्वेश्चन है ना इसमें. क्वेश्चन ये है, तुमको कैसे पता चलेगा कौन सा किधर रखने का? ये तो कितना कंफ्यूजिंग है ये. I agree with you. So what I'll do is I will show you the adda. Okay. Yes, किसको किधर डालूं? That's a good question. उसके लिए उसका जवाब है deploy like a boss. दिख रहा है ऊपर क्लाउडेरा लिखा हुआ है ना, और यहाँ पे लिखा part 1. So I just click on that part 1. Now I'm scrolling. Okay. Conclusion. So let's go to the part 2. यहाँ पे part 2 भी है. Because I'm using this, remember VPN, इसके लिए थोड़ा सा स्पीड कम हो जाती है, हल्की सी कम होती है बस. सिक्योरिटी हाई हो जाती है लेकिन स्पीड कम हो जाती है. कितनी खुशी हो रही ना देख के. हाँ, अब समझ में आया. अच्छा, लेकिन इसको अपनी को प्रैक्टिकल करने का है दोस्त. समझने आया बराबर है, तो ये भी घर पे देख लेना. बट नाउ द क्वेश्चन इज, लेट्स गो बैक. इसको काम पे लगाते पहले. व्यू बाय होस्ट. सो आई हैव 3 डेटा नोड्स, 1, 2 and 3. अब ये खाली खाली दिख रहा है ना, इस पे हाइव डाल देते हैं. यस, हाइव. एंड देन आई एम गोइंग टू आस्क यू अ सिंपल क्वेश्चन. जिनको डेटा साइंटिस्ट बनना है ना, मतलब पहले जो सपना देख रहे थे, एक्चुअली उससे ज्यादा पैसा इसमें है. यू नो व्हाई? बिकॉज वंस अपॉन अ टाइम डेटा साइंस का जो जॉब है वो सब जाने वाला है, ले ऑफ मिलने वाला है. बिकॉज पाइथन में सारे पैकेजेस रेडी हो गए, ऑलमोस्ट रेडी हो गए. यू विल नॉट बिलीव, 75% रेडी हो गए, 25% बचा हुआ है. और जिस दिन वो भी हो गया ना, दे आर ऑल 1 2 3 बाय बाय, डू समथिंग एल्स. कहाँ डाला मैंने हाइव को? यहाँ पे. ओके, सो यहाँ से इसको हटाया. See now, see, I have moved the hive also. The question that I'm going to ask you now is, मैं यहाँ से ना हाइव का जो ये गेटवे है, मैं इसको हटा रहा हूँ. पॉइंट नंबर 1. यहाँ पे कितने गेटवे हो गए हाइव के?
4. See, 1, 2, 3 and 4. You tell me why. जान दो यार, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. बिकॉज हाइव जो है ना वो हमेशा क्वेरी किधर करेगा, जिधर डेटा है कि नहीं. तो तुम बोलोगे फिर चौथा वाला इसकी क्या जरूरत पड़ी. हाँ, दैट इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सी, पहले वाले का तो आंसर मैंने दे दिया. जहां पे डेटा वहां पे गेटवे चाहिए ताकि वो डेटा को क्वेरी कर सके. तो आंसर मिल गया. ये जो फोर्थ है यहाँ पे तो डेटा नहीं है ना, फिर यहाँ पे हाइव का गेटवे क्यों है, दैट्स अ क्वेश्चन. तो उसका आंसर ये है कि ये जो मशीन है 1 to 1, according to my plan, I'm going to make that machine a gateway machine. Okay, there is one more thing I want to move, and that is Zookeeper from Cloudera Manager machine to this particular machine, which means now it looks really good. Have a look. This is all Cloudera management related services. तो मैंने Cloudera manager का मशीन ही अलग कर दिया. तुमको याद है CM and CDH? So when I say CM, Cloudera manager, all CM related is here. When I say CDH, that means these 4 machines, sorry, 3 machines, 1, 2, and 3 is part of CDH. And when I say gateway, 1 to 1 is the gateway. But confusing. So उसके लिए क्या करेंगे? Continue. अब आया डेटाबेस का टाइम. अब ये डेटाबेस कैसे हमको सताने वाला है वो देखो. ओके, सो इफ आई से हाइव का डेटाबेस बनाया गया, तो पहला क्वेश्चन बनाया, क्वेश्चन है ही नहीं. क्वेश्चन ये कि डेटाबेस रखा किधर था, यहाँ पे 216 के ऊपर. करेक्ट. सो आई हैव टू करेक्ट दिस फर्स्ट. 216 का आईपी एड्रेस, उसको सब जगह पे अपडेट करना पड़ेगा. तुमने सुना होगा ना कि एप्लीकेशन को डेटाबेस से कनेक्ट करना है. कर रहा हूं. एप्लीकेशन का नाम बोलो जरा. क्लाउडेरा मैनेजर. अब दूसरे एप्लीकेशन का नाम बोलो. ह्यू. तीसरा ऊजी. चौथा रिपोर्ट्स मैनेजर आरमैन. तीसरा हाइव. डेटाबेस का नाम चूज करो. पोस्टग्रे एसक्यूएल, ओरेकल, माई एसक्यूएल. अब उसको कनेक्ट करना है. दैट्स इट. तो मैंने उसको एड्रेस बता दिया कि तेरे को डेटाबेस मिलेगा किधर. पहला क्वेश्चन. अब डेटाबेस का नाम बताना है. सो डेटाबेस का नाम होगा हाइव. यूजर का नाम भी हम रखेंगे हाइव टू सेव everybody from the confusion, and password is password. ठीक है ना. ये मैंने पेस्ट किया इधर, इधर और ये इधर. ये है आरमैन. तो जिन लोगों को थोड़ा बहुत ओरेकल के बारे में पता होगा उनको आरमैन सुना हुआ लगा होगा, है ना. दैट्स हाउ इट इज. Hue, Hue, isn't it? So I have mentioned all this. अब मैं करूंगा टेस्ट कनेक्शन. तो तुम बताओ चलेगा कि नहीं चलेगा. टेस्ट करूंगा तो चलेगा कि नहीं. तो जो यस बोल रहे सब थक गए. क्यों थक गए? बिकॉज मैंने उनको बोला था ना, मैंने सिर्फ सीएम का बनाया है. यहाँ पे डिड आई क्रिएट डेटाबेस फॉर हाइव? नो. ह्यू? नो. आरमैन? नो. ऊजी? नो. इजंट इट? अब क्योंकि सहूलत मिली है कॉपी पेस्ट की, तो क्यों ना उठाऊं मैं उसका फायदा. ओके, MySQL -u, यूजर का नाम लो, बन गया है ना. अब मैं इसको करूंगा टेस्ट कनेक्शन. तो अगर ड्राइवर में प्रॉब्लम्स नहीं है, every machine if they have drivers,
then it will work. If every machine does not have the driver, it will not work. So why every machine? That's a good question. Every machine, why? तुमको याद है मैंने हाइव एक अलग मशीन पे रखा है, फिर उजी एक अलग मशीन पे डाला है, ह्यू एक अलग, सॉरी ह्यू और उजी एक ही मशीन पे है, isn't it? लेकिन हाइव का मशीन अलग है. और हाँ, आरमैन तो सेम मशीन पे 216 पे. So let's do test connection. लो तो हाइव ने दिया पड़ी और किसने दिया? आरमैन ने. बाकी उजी और ह्यू, इनके यहाँ पे ड्राइवर का प्रॉब्लम नहीं आया. आ रहा है लॉजिक समझ में? तो इसका मतलब ये होता है कि आई हैव टू कम बैक हियर. ओके, एग्जिट, क्लियर एंड शो यू द स्क्रिप्ट. एक बार एलएस करके दिखाता हूँ. यहाँ पे मैंने इसको डाउनलोड किया था. ओके, नाउ आई एम टेकिंग यू बैक टू द स्क्रिप्ट. ये दिख रहा है इंस्टॉलिंग जेडीबीसी कनेक्टर्स. अब एक प्रॉब्लम है ना इसमें, लेकिन मेरा जो प्रॉब्लम है वो एक मशीन पे नहीं, मेरा प्रॉब्लम कितने मशीन्स पे है? 5. बराबर है कि नहीं? एंड आई डोंट नो हाउ मेनी. तो उसके लिए क्या करना है? ARP तुमको दिखा रहा हूं मैं, मेरा प्रॉब्लम कितने मशीन्स के ऊपर है. ओके, नाउ इन ऑर्डर टू डू दैट यू विल सजेस्ट मी, possibly you will suggest me कि go with PDSH, go with DSH. But the problem is we have already gone with that. So let's go with something else. क्या बोलते हैं? बराबर है ना? So इसके लिए हम जाएंगे डाउनलोड्स में. पहले I'll show you what are the files available here. First, I need a file known as protect PEM. This is just an identifier in this case. I will need PSCP. And then, because I want to install something, isn't it? उसके लिए मुझको लगेगा ये वाला फाइल, स्क्रिप्टिंग वाला. तो मैं क्या करूँगा? पहला काम PSCP. अब देखो ये मेरा वर्क स्पेस है. अभी तक तुमने वर्क स्पेस से मेरे को GUI में काम करते देखा है ना. अभी तुम क्या देख रहे हो? मुझको CLI में काम करते देख रहे हो. तो if somebody wants to do that, yes, you are welcome, you can. So मुझको सबसे पहले protect.ppk as an identifier दिखाना पड़ेगा. Then I want to copy a file called protect.pem. So एक काम करेंगे, इसको थोड़ा सा, so that you can see everything on one screen if it is possible. Okay. अच्छा, दूसरी कौन सी फाइल है जो मुझको भेजनी है? cluster cmd.sh, ये फाइल भेजनी है. Okay. There are other files like put and move, but right now we'll stick to what we need. Okay, I just need this file for now. Yeah, because I just need to fire the commands. CentOS @ IP address of which machine? This machine, 10.0.1.216. 10.0.1.216. देखा तुमने? अब वहां कहाँ रखना है? होम CentOS. यहां जाके रख देना है इन फाइल्स को. तो उसने मुझको बोला, मैंने रख दिया. तो मैं जाके देखूंगा उसने रखा तो कहाँ रखा? यहाँ रख दिया. Okay, now the problem is when I actually ask to bring this file, which file? This one, protect.pem. तो उसने क्या किया मालूम है? इसकी जो परमिशंस है ना, इसको चेंज कर दिया है. तो मेरे लिए काम बढ़ गया. chmod, while it was bringing it here, it actually changed it.
So let's make it 400. Now we are good to go. Some people, those who are thinking, क्या है उस फाइल के अंदर, they want to see, right? तो इसमें लिखा है कि तुम्हारी जो चाबी है उसका नाम है security.pem. तो मेरा पहला काम क्या होगा? security.pem. आइदर मैं स्क्रिप्ट में जाके चेंज करूं या मैं यहां पे इसको चेंज करूं, बराबर है कि नहीं? तो मैंने इसका नाम क्या कर दिया? security.pem. एक पॉइंट खत्म. Now it's saying you will need a file called cluster. So I will need to create one. Nano cluster. And I need to paste IP address of all the machines which are required. So let's copy this, paste. तो उसमें 247 एक बार देख लेते ताकि श्योर हो. एक तो है 66 और दूसरा है 247. तो कितने बचे? 1 2 3 4 5. I saved it. Now it is saying कि cat cluster, isn't it? मतलब जब मैं ये स्क्रिप्ट फायर करूंगा ना, कौन सी वाली? क्लस्टर CMD वाली, तो वो क्या करेगा? क्लस्टर के अंदर जितने भी IP एड्रेसेस है उसके अंदर SSH करेगा, क्योंकि उसके अंदर मैंने उसको आइडेंटिफायर दिया हुआ है यहाँ पे. तो वो SSH करेगा आइडेंटिफायर की हेल्प से. इट विल एक्चुअली लॉग इन एंड देन फायर कमांड, any command that I give, any command. Okay. So the question is, what is the command? तो तुम्हारी स्क्रिप्ट में वो कमांड लिखा हुआ है. See, wget. So if I fire this now, it will do the wget only on one machine, isn't it? So I have to do sh cluster cmd wget, correct? So इसने बोला पहली मशीन, दूसरी मशीन, तीसरी मशीन, fourth and the final one. तो सब मशीन पे उसने क्या किया? डाउनलोड कर लिया. तो तुमको देखना है. समझ गया मैं. CMD LS दिखा दिया मैंने. LS किया हर मशीन के ऊपर. तो एक मशीन जो है उसके ऊपर ये सब बहुत सारा सामान है, कचरा. तुमको पता चल गया ये क्लाउडेरा मैनेजर वाला मशीन है. एंड एवरी अदर मशीन यू जस्ट हैव वन फाइल, दैट इज दिस कनेक्टर, isn't it? I want to do untar on all machines. So I will do CMD, cluster CMD, and then untar. हो गया. Make directory. So I will say again, cluster CMD, make directory. So सब पूरे cluster पे, it doesn't matter how many node machine you have. CMD done. This is the final command, है ना? वो jar file हमको भेजनी है. तो sh cluster CMD. अगर सपोज, अगर याद रखना इस पॉइंट को, मैंने ये पहले कर दिया होता और इसका इमेज मैंने सेव किया होता तो ये झंझट मुझको करनी नहीं पड़ती, बिकॉज आई हैव डिप्लॉयड ऑल द मशीन विद दैट इमेज. लेकिन मैंने जानबूझ के इसको ऐसा रखा है ताकि मैं तुमको दिखा सकूं कॉन्सेप्ट के लिए. गेटिंग द पॉइंट? अदरवाइज यू विल नॉट नो व्हाट हैपेंड, इजंट इट? और वी विल सेव टाइम आल्सो. अब सेव टाइम पे याद आया कि देखो अभी 5:30 बज गए हैं and we are almost done. So let's see if this is working, not working. देखा तुमने? मज्जू आ भी गयो. Let's continue. It is all on LAN. Okay, all on LAN.
अब यहाँ पे ना कुछ पैरामीटर्स है। पहले तो ये तुमको एड्रेस याद रखना है, डीएफएस डीएन का, डीएफएस एनएन का, ओके। और हाइव का तो वेयर हाउस है, ये खाली एड्रेस तुमको याद रखना, दैट्स इट। We are going to deal with this little later. Okay, forget about that. What is minimum, what is maximum, and blah blah blah. Continue. अब जो है छोटा सा ब्रेक ले लिया जाए, छोटा सा 5 मिनट का, okay? And once we are done with this, we'll deal with the gateway and we will go home. ठीक है? कल जो है हम लोग प्री requisites कर्नल ट्यूनिंग का टॉपिक देखेंगे, and then you can practice. And उसके बाद जो है आंधी तूफान स्टार्ट होने वाला है नेक्स्ट सैटरडे एंड संडे से। So wish you all the best for 5 minutes. We'll come back, we'll join back in 5-10 minutes maximum. And we will make sure that we are finished before 6 o'clock. Okay, our cluster is ready. So let's go ahead with continue. And it says, congratulations, finish. Now, the last and final part of this is looking at the gateway. Okay, so far naming a cluster is concerned, you can rename this to whatever experience you're going to. So for an example, cloud age. Oh, you can put ISRO, NASA, whatever you like, isn't it? Because that is your cluster. Now the question is, where is the gateway? So I will show you the host roles. These are the services running right now on these 5 machines. Okay, according to the plan, this is the gateway. Now, what does that actually mean to you? What does it mean to you? So you have no idea, no clue about this, isn't it? So we'll understand that quickly and we'll finish this session once we have understood that component. Now the question is, when I say gateway, what machine is that? So let's take the IP address from here. This machine is the gateway, correct? Okay. So now I'm typing something up. Watch Hadoop fs-ls / This is my result. Looking at this result, you should quickly understand, where is this root coming from? Root to Linux pe hota hai na? And all this proc folder and root and all this is on Linux. This is never on Hadoop. So I fired a command of Hadoop. See here, my client is Hadoop, but I'm getting the result that is of Linux. You know why? Because you are right now on a Cloudera manager machine. You are on a machine which is running all the Cloudera management related services. Yes, of course, we have put one extra burden on it. Instead of using RDS as a production, which we are going to use later on, don't worry, we'll go to that path a little later. But for now, for you to practice this week, we want this to be this way. Okay, so point number 2, I'm not able to run my command. Okay, now point number 2, I'm going to, you remember DFS/DN. DN is for data node. I told you to remember this path while I was doing installation of Cloudera manager and CDH. So I'm hitting enter. See what happens. Point number 1, my client is not able to give me any service, and it is also telling me that there is no data on this machine. No data, no service. So say for an example, you are a administrator and I'm asking you, do you have access to the data? So your answer is no. Okay, do you have access to the services? So the answer is no, you don't actually. You don't have access to the services as well. Services are also used by other teams. You deploy that, you configure that, you troubleshoot that, you take backup, you do restore, you maintain it,
You do a lot of other things, but you do not access it. And if you access it, it is only for testing purpose. So what we'll do is, as I told you, now I'm going to another machine, okay? And firing the same command. Now, before I go to another machine, I'm first going to cat cluster so that I can take the IP address, just any random IP address, okay? But I have not taken one-to-one purposely because that is the gateway. Agree? Perfect. So let's go SSH hyphen I. This is the key, we renamed it, if you remember, CentOS at the rate IP address. Okay, so I'm connected to that IP. I'm typing the same command, Hadoop FS hyphen ls /. Cloudera manager machine, I did not get any service, but here I am getting it. Now the question is, should anyone from any department with any authority get access to this information, where HDFS happens to be the root of Hadoop? So there is no, not at all. We are supposed to secure that. We are supposed to secure that for the organization. How to do that? We'll see that later. First of all, understand what is a gateway. So we want every department to come from the gateway. We don't want them to jump on any machine and then log in and screw our happiness. का मतलब उसका दूसरा मतलब वही होता है. Okay, so now let's clear the screen and go to the gateway. Now, because you know the IP address for the gateway, oh, I have to exit because यहाँ पे वो नहीं है. Cat cluster. This is the IP, you remember? Okay. And I'm going to paste that IP over here. I'm connected to the gateway. I'm typing once again, Hadoop FS hyphen ls /. See, I'm not getting any service from here. बराबर है ना? So question is, which service I'm not getting? So answer is HDFS service. लेकिन मेरे प्लान के हिसाब से यही गेटवे की नहीं. सी, मेरे प्लान के हिसाब से, है ना? तो अब तुमको जल्दी से समझ में आ जाएगा क्या बोल रहा हूं मैं. कैसे? हैव अ लुक. आई एम गोइंग टू इंस्टेंसेस, add role instances, gateway on this machine. क्या लिखा है देखो, HDFS gateway. Okay, continue. Okay, yarn का भी मैं ले लेता हूं. Instances, add role instance, yarn gateway on this machine. मतलब तेरे को कोई भी सर्विस यूज करना है, तुझे एक गेटवे से आना है. क्यों? क्योंकि तेरा ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन और तेरा मॉनिटरिंग, इंक्रिप्शन, सब कुछ कौन देखने वाला है? मैं देखने वाला है. Isn't it? तो तू डेटा साइंटिस्ट है तो आई डोंट केयर. You have to come from the gateway. Only if you have access to that particular data set. So what I'm doing is I am refreshing configuration services. Okay, client services. So I'm coming back. I'm doing up arrow. See, up arrow. है ना? I'm hitting enter. अभी थोड़ी देर पहले मैंने फायर किया था सेम कमांड. गेटवे डालने के बाद you can look at my command. I am getting the service because of the gateway. Now everybody, they actually take access only from here. So they also call this access node. मैनेजमेंट ऐसे रहता है, कुछ भी उनको एक्सेस दिया बोले एक्सेस नोड है, उनको गेटवे से कोई लेना देना नहीं. लेकिन हमारे लिए क्या है ये गेटवे? दिस इज द प्लेस वेयर दे आर गोइंग टू टेक एक्सेस ऑफ एवरीथिंग. नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो सबको इधर से हमको एक्सेस देना है, किधर से? गेटवे से, है ना? तो एक क्वेश्चन अराइज होता है, गेटवे पे डेटा है या नहीं है? व्हाट डू यू से, यस और नो?
जल्दी बोलो यार, 4 मिनट बाकी है। नो, सी, मैं CD करके दिखा देता हूँ, CD/TFS/DN। नहीं है ना? नहीं है। अब मैं एग्जिट करता हूँ, ओके, और डेटा नोड पे जाते हैं अभी हम। से फॉर एन एग्जाम्पल, पिछली बार वो 2 पे गए थे ना, अब कुछ नई जगह पे जाते हैं, ओके। Here I am, see, and now I'm going to fire the same thing, CD/enter। DFS का फोल्डर दिखा कि नहीं? दिखा ना? सी, DFS दिखा कि नहीं? DNNNSNN। और ये तो अपना वो सिंगल नोड की जैसे दिख रहा है रे। हाँ, देखा, काला पानी में मेहनत करने का फायदा। बट इसका एक्सेस किसी को नहीं दिया जाता है। हाँ ना ना, अभी तो हम लोग सीख रहे बोल के यहाँ से ऐसा आ सकते हैं। नो बडी कैन एक्सेस इट दिस वे। गेटिंग द पॉइंट? ये पॉइंट याद रखना। तो वो कैसे, क्या आगे जाके क्या करना है हमको, वो सब बाद में। अभी खाली इतना समझ में आया, गेटवे। आई एम मोर देन हैप्पी, के लिए इतना काफी है। ओके, फ्रॉम हियर वी विल बिगिन द नेक्स्ट फन। हमारा जो मेन कंपोनेंट है वो है सिक्योरिटी, ओके, which means we have to secure by enabling Kerberos, by doing REST encryption, by TLS, by authorization। तो ये हमारा क्या है, मेन काम बाकी है। तो उसके लिए हमको क्या क्या लगने वाला है? हमको लगने वाला है एक MIT KDC और एक एक्टिव डायरेक्टरी। सो वी आर गोइंग टू डू विथ MIT KDC एज वेल एज एक्टिव डायरेक्टरी। अगर मैंने दोनों को यूज किया तो उसको क्या बोलते हैं? वन वे ट्रस्ट। अब तुम्हारे इंग्लिश में तुमको भाई दोनों है तो फिर वन कैसे आया? यही तो बात है ना दोस्त, दोनों बोल के वन बोल रहा हूं, वन वे ट्रस्ट। और अगर मैंने सिर्फ एक ही चीज यूज किया तो टू वे ट्रस्ट। तो ऐसा क्यों बोलते, वो तुमको समझना पड़ेगा, इजंट इट? दैट्स हाउ इट इज। और उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बोलने की भी, करने की भी। एंड व्हेन यू गो फॉर एन इंटरव्यू, sky is the limit. Depends how much hardworking you are, how many friends you have, those who are great friends or chomu friends, it all depends on that। ठीक है, तो आज के लिए फिर इतना काफी है। विश ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर। व्हेनेवर यू डिप्लॉय अ क्लस्टर, व्हाटएवर इट इज, छोटी सी एक बेरहमी तुमको दिखानी पड़ेगी, एंड दैट इज गो टू स्पॉट रिक्वेस्ट, सिलेक्ट ऑल, एक्शन, एंड कैंसल रिक्वेस्ट। Wish you all the best.